أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अच्छा जनाब, तो कल आप लोगों का लेक्चर आ गया पहला वाला. सूरत बकरा वालों की बात कर रही हूँ. आज उनकी क्लास है ना एडवांस लेवल की. तो लेक्चर किस किस ने सुना है? लेक्चर جی मिल میم गया میں نے سن لی جی میم میں हाँ, نے سن لی शादाब ने सुन लिया. और किस किस ने सुना है? शाहीन ने नहीं सुना होगा. शाहीन को तो पका पकाया चाहिए. हांडी आगे रख दो उसके, है ना शाहीन बेगम. جی میم جی جی आपने میم سن لیا आपने جی लेक्चर میم सुना? अच्छा, अभी मैं पूछूंगी جی ना میم سن सवाल. لیا हाँ, पूछूंगी क्या था उसमें. ہاں आयशा, आपने सुना? میں بھی نوٹ ڈاؤن نہیں کیا وہ سنا ہے हाँ, नोट डाउन करके क्या करना है. दिमाग में नोट हो रहा है ہاں ना. نہیں میم تھوڑا दिमाग में हो रहा نہیں है ना, काफी है बस. پرفیکٹ हाँ, वो میم दिमाग में اتنے होता है پرفیکٹ और फिर वो आगे पीछे होती रहती चीजें. अच्छा, आयशा आपने सुना लेक्चर? शादाब तो कह रही है सुना है. जुबैदा ने भी सुना होगा आई थिंक. टाइम मिला जुबैदा? हम्म, इसका मतलब मोस्टली लोगों ने खोल के देखा ही नहीं. मिल तो सबको गया है ना कि मैं ग्रुप में डालूं, बताएं मुझे. نہیں نہیں میم میم مل گیا ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھا ہے میں نے، بلکہ کمنٹ بھی کیا ہے، لائک بھی کیا ہے، اور ہوں میں تو ویسے بھی آپ کو 2 دفعہ سنتی ہوں، پھر ہوں. زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں تو میم مجھے نہیں پلنے پڑتا، 2 دفعہ سمجھتی ہوں، پھر نہیں, بہت اچھا سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نہیں میم اس لیکچر کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو اس میں دیا گیا ہے نا, ٹیسٹ کے لیے دیا سورہ گیا ہے. بقرہ کا ہاں, پہلا وہ میم لیکچر سورۃ وہ میم البقرہ سن کا. لیا میں نے سن میں نے لیا. سن لیا اچھا, مجھے بتائیے کس کس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے وہاں پہ. میم سورۃ فاتحہ کے نام بتائے گئے ہیں اور ہوں الحمدللہ رب العالمین صرف لکھا گیا ہے، اور ہوں ال کے نام حمزۃ الوصل کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہوں اور الف کے لام میم کی اقسام بتائی گئی ہیں وہ کیا کیا ہیں، ہوں. اور اس کے علاوہ ہاں یہی بتایا گیا اس کا مطلب آپ نے نوٹس بھی بنائے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہے جی میم میں نے نوٹ کی تھی ہاں, تو مجھے بتائیں ابن اور اسم کا حمزہ کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل حمزۃ الوصل ہوتا ہے. ابنتن کا بھی ہو گیا. ابن اور ابنتن میں کیا فرق ہے؟ مذکر مؤنث ہے اور مؤنث۔ وہ مذکر مذکر ہے ابن اور مؤنث۔ ہم، ابنتن مؤنث ہے. اور اسی طرح آپ کا امراۃن کا حمزہ, دو چار تو آپ کو رٹے ہونے چاہیے. امراۃن کا حمزہ, اور بیوی کو کہتے ہیں نا امراۃن, ہے نا. اور شوہر کو بھی کہتے ہیں, شوہر کو جو ہے وہ بھی اس کا حمزہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے. رفع نصب جر تینوں حالتوں میں آتا ہے, شوہر کا بھی. تو اب یہ حمزہ جو ہوتا ہے سارے کے سارے یہ وصلی ہوتے ہیں. تو وصلی حمزہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملانے پر ہاں, اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. اور الف کی صورت ٹیمپریری حمزہ ہوتا ہے ایک جو کہ گر جاتا ہے, الف کی شکل میں باقی رہتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. صحیح ہے. الف کی شکل میں خالی ہو جاتا ہے نا, حرکت جس کے پر حرکت نہیں آتی وہ پھر پڑھا بھی نہیں جاتا لفظ. تو پھر پڑھا رہتا ہے ادھر, کوئی اس کو پڑھتا بھی نہیں ہے, بس بیچ میں لکھا رہ جاتا ہے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو آؤزو کے اندر اب آپ کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے, پکی ہونی چاہیے. میں صرف ایک دفعہ گو تھرو کر رہی ہوں جلدی جلدی, میں صرف آپ نے جواب دینے, میں کچھ نہیں بولوں گی. تو یہاں پر جو آ رہا ہے باللہ جار مجرور, یہ کیا ہے؟ جار مجرور جو ہوتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جلدی سے جواب دے. ظرف ظرف ہے, ٹھیک ہے. ظرف کون سا ظرف, حقیقی یا مجازی؟ مجازی۔ مجازی ہیں. حقیقی تو دوسرے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, وہ نہیں پڑھ رہے, ہم مجازی پڑھ رہے ہیں. سورہ البقرہ میں ہم مجازی پڑھیں گے. اچھا, پھر یہ جو مجازی ظرف ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے نا. ظرف مجازی دو طرح کا ہوتا ہے. جیسے یہ جار مجرور ہے تو یہ دو طریقے سے آ سکتا ہے نا جملے میں. پھر لغو ظرف لغو ظرف مستقل ہاں, یا لغو بن کے آ سکتا ہے یا مستقر بن کے آ سکتا ہے. مستقر جو ہے نا استقرہ سے ہے, مستقر رن جس نے قرار پکڑ لیا ہو. مستقر رن نہیں ہے, مستقر رن ہے. استقرہ باب سے, باب استفعال سے, اس کا اسم المفعول ہے جس نے قرار پکڑ لیا ہو.
ठीक है ना, तो वो मुस्तकर रुन होता है। लफ्जों के बेस में जाया करें। तो यहाँ पर जो जार मजूर आ रहा है, फिर ये क्या कहलाएगा, लफ्ज है या मुस्तकर है? लघु है। लफ्ज है। लघु लफ्ज क्यों है, मुस्तकर क्यों नहीं है? इसलिए इसलिए कि मैम इसका मुताल्लक नहीं है। मुताल्लक क्या है, जुमले में मौजूद है। जब जुमले में मुताल्लक मौजूद होता है, जार मजरूर कितनी चीजों के मुताल्लिक होते हैं, उनमें सबसे पहली चीज फेल ही होती है। ठीक है। और बाकी जो हैं वो सारी वो जितने भी सीगे हैं बाकी, वो फेल के अलावा हैं। वो सारे इसमें तब्दील भी है, इसमें जितने भी हैं वो सारे इसमें सिर्फ एक फेल है शुरू में। फिर इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इसमें जो जो आगे बोलते जाए, मस्तर हो गया, मस्तर भी इसम होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जितने भी जी। हैं वो सारे इसम ही हैं। मुबालगा है, तब सिर्फ मुशब्बा मुशब्बा है, है। इस्मुल फेल है, वो भी इसम, जिसका साथ इसम लग जाता है वो इसम ही होता है। सही है ना। तो अगर मुताल्लिक जुमले में मौजूद है तो फिर ज़र्फ़ लग़्व, इसका जवाब जल्दी क्यों नहीं आया? गलत सलत जो भी जवाब दिया करें, मुझे उससे ये पता लगेगा कि आपको आया समझ के नहीं आया। अच्छा, और ये ज़र्फ़ लग़्व है क्योंकि इसका मुताल्लिक मौजूद है। सही है। अब मिनश शैतान रजीम क्या बन रहा है पूरा? मुतालिक बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? वो मतलब जार मजरूर भी है और मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी भी है। में तौसीफी मुरक्कब भी है। तौसीफी बन के मल्टीप्लाई हो रहा है मिन से, फिर मुरक्कब जारी बन गया। एट द मुरक्कब हाँ, जब भी हरफ जर आ जाएगा ना बाहर, तो ब्रैकेट में जो भी किया होगा उससे ज़रब खा के मुरक्कब जारी बन जाएगा। जब भी बाहर मुजाफ होगा तो ब्रैकेट में जो भी होगा वो उससे मल्टीप्लाई खा के मुजाफ से क्या बन जाएगा? जार मजरूर। अगर बाहर मुजाफ है, हरफ जर नहीं है, और अंदर तो ये आ रहा है, मुदाफ इले, तो मुदाफ इले बन जाएगा। हाँ, जो चीज बाहर होती है ना वो ही अगली चीज उसका दूसरा पार्ट बन जाती है। हरफ जर था तो ये सिफत मौसूफ मिलके मजरूर बन के ये जार मजरूर बन गए। ठीक है। अगर बाहर मुजाफ होगा तो ये जो आपका मौसूफ सिफत है, जो भी अंदर हो, जो भी चीज अंदर है, चाहे इसम इशारा है, मुरकब इशारी है, मुरकब इजाफी है, जो कुछ भी अंदर है वो मल्टीप्लाई खाएगा बाहर वाले से, तो इसका अगला पार्ट बन जाएगा, जो बाहर है उसका अगला पार्ट बन जाएगा। सही है। जी। समझ आइए ये बात, जो चीज बाहर होती है उसके साथ अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई करके उसका अगला पार्ट बनती है। सही है। तो ये अभी बार बार जब भी आएगा तो मैं पूछूंगी कि अच्छा भाई, बाहर देखें और फिर जा रहा है तो ये पूरा अंदर वाला, चाहे जुमला हो कुछ भी हो, चाहे एक इसम ही क्यों ना हो, मुफरद ही क्यों ना हो, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, जार मजरूर बन जाएगा। क्योंकि बाहर हरफ जार है, बाहर मुजाफ हो तो उसका मुजाफिल है, अगर बाहर मौसूफ हो तो वो पूरा अंदर वाला क्या बन जाएगा, उसकी सिफत बन जाएगा। इस तरह मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। सही है। जिस तरह बाहर जीरो हो तो अंदर वाला मल्टीप्लाई होके सब जीरो हो जाता है ना, जी। है ना। 3 + 5 जी। +2 प्लस ये करके अब बार जीरो है तो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा ना। हम्म, नहीं होगा, हिसाब आता है कि नहीं आता? जीरो कैसे होगा ये सारा? 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है। 10 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 जीरो जा जीरो हो जाएगा। इतना तो आता ही होगा, अगर स्कूल की शक्लें देखेंगे तो इतना तो आता होगा। नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां की होती हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही होती। अंदर जो कुछ भी होगा, बाहर जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो मिलियन ही क्यों नहीं है अंदर, बाहर जीरो जीरो ही हो जाएगा। इसी तरह जो कुछ भी अंदर होता है बाहर वाले से मल्टीप्लाई खा के उसका दूसरा पार्ट बन जाता है। फिर उसको हम मुरक्कब जारी कह के हाँ, इसको फिर क्या बनाएंगे, जार मजरूर को, ये जार मजरूर क्या बनाएंगे? इस जार मुतालिक में
मुताल्लिक बनाएंगे, मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। ये जार मजरूर, इसका ये मुताल्लक है, और ये ज़र्फ़ लग़्व है, क्योंकि मुताल्लिक मौजूद है। ज़र्फ़ लग़्व जो है वो है जार मजरूर का दूसरा नाम ज़र्फ़ होता है। फिर ज़र्फ़ दो तरह की होती है, ज़र्फ़ लग़्व भी होती है और मुस्तकर भी होती है। तो ये ज़र्फ़ लग़्व जो है बन के ये उसका मुताल्लिक बन रहा है कि नहीं बन रहा, औज़ु के, जी मैम। है ना, बन रहा है। बन रहा है। और ये वाला क्या है, ये वाला भी जार मजरूर बन के इसी का, इस जार मजरूर का मुताल्लक भी जुमले में मौजूद है। तो ये भी क्या, जार मजरूर मुताल्लक लव। औज़ु बन जाएगा, ज़र्फ़ लग़्व बनेगा। मुस्तकर कोई भी नहीं है यहाँ पे, सही है। फिर औज़ु फेल जो है अपने फाइल और मुतल्लिकान दो दो है ना, मुतल्लिकान से मिलके क्या बन जाएगा, जुमले फेलिए। जुमला या फेलिया बन जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये आयत आ सकती है ना आपको टेस्ट में, तो आपको आनी चाहिए ना कि ये ज़र्फ़ है, ये भी ज़र्फ़ है, क्योंकि मुताल्लक मौजूद है। फिर मुताल्लक अपने मुतल्लिकान से मिलके क्या बन जाएगा, जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। बिस्मिल्लाह पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह में बी बाहर है। अब देखिए, मैं वही बात बताई जो ऊपर है ना, अंदर ये है पूरा। अब ये जो कुछ भी है बी से मल्टीप्लाई होके इस जार का मजरूर बन जाएगा, है ना। जी। लेकिन उस अंदर वाले को डिफाइन तो करना है ना, सिर्फ जार हम्म। मजरूर कह के छोड़ तो नहीं देंगे ना, डिफाइन तो करना है। जी मैम। हाँ, तो अभी ये क्या है, ये इसम है, ठीक है। और ये इसम, इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या बन गया, मुजाफ। अब इसका सबूत कहाँ से मिलेगा कि ये वाकई मुजाफ बन रहा है, तो आगे वाली जेर से मिलेगा, अगले इसम की जेर से मिलेगा। इस जो हमारा होता है ना मुजाफ, हमेशा इसम आता है, नाउन आता है। और जो हमारा मुजाफ इलैह होता है वो क्या बन जाता है, वो हमारा जमीर भी बन सकता है, और वो हमारा कोई इसम भी मुजाफ बन सकता है, मुजाफ इलैह बन सकता है। ठीक है, तो ये हमने मुजाफ बना लिया। अभी इसको छोड़ दें मुजाफ बना के, अभी आ जाए आगे। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में कर लिया हमने, इसको बनाया हमने मौसूफ, और इसको सिफ्त वन सिफ्त टू। तो ये क्या बन गया, मौसूफ सिफ्त वन और टू से मिलके क्या बन गया, मुरक्कब तौसीफी। मुरकब तौसीफी बन के क्या बन गया, मुजाफिर है। मुजाफिल है। मुजाफिले मुदाफ बन इन्हें गया। बन गया इस्म के लिए। क्योंकि बाहर मुजाफ था ना, तो उसका अगला पार्ट बनाना था ना, तो ये क्या जी। बन गया, मुजाफ का अगला पार्ट मुजाफिले बन गया। तो ये मुजाफ और मुजाफिले मिल के अब क्या बन गए, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बन के क्या बन गए, बी से मल्टीप्लाई होके फिर ये बी से मजरूर बन बाहर, अभी का बाहर मजबूर बी बन गया। है, इसके लिए बाहर इसम था, मुजाफ था, तो ये मुरक्कब इजाफी बना पूरा, है ना, जी। ये पूरा हम्म। मुरक्कब इजाफी बना। अब इस मुरक्कब इजाफी के लिए बाहर बी है, तो वो मुरक्कब इजाफी इस बी के लिए मजरूर बन जाएगा। फिर जार और मजरूर मिल के मुताल्लिक बन जाएंगे किसके, फेल माजूफ के। अभी मुताल्लिक जुमले में मौजूद नहीं है, यहाँ पे मुताल्लिक जुमले में मौजूद नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। मुस्तकर। जी। ये ज़र्फ़ ज़र्फ़े मुस्तकर मुस्तकर। बन जाएगा। फिलहाल ये ज़र्फ़े मुस्तकर है। अल्लाह ताला ने इसको ओपन रखा है ताकि हम जो भी काम करना शुरू करें वही फेल पहले लगा लें, ठीक है ना। तो वो जी। फेल फिर अकरा हो भी हो सकता है, मैं पढ़ती हूँ सात नाम अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। फिर अशरा भी हो सकता है। अशरा तो हर काम के लिए कह सकते हैं ना, चाहे आटा गूंदो कुछ भी करो, है ना, तो अशरा कह जी। सकते हैं। अच्छा, अबदाऊ, अबदाऊ का क्या मतलब है, बा दाल हमजा रूट वर्ड है। बदा क्या होता है, स्टार्ट। शुरू करना, बदा शुरू शुरू करें। करना, बदा। अबदाऊ, वही अबदाऊ, अबदा क्या है, आपका मुजारे का ये सीगा है ना, ना जमीर वाला। कहाँ से पता चल रहा है कि ये मुजारे है, कैसे पता चल रहा है, हमजा की वजह से। एक तो हमजा असली है यहाँ पे, अबदाऊ, दूसरा हम्म। लास्ट लेटर पे पेश आ रही है। हम्म।
पता चल रहा है कि ये क्या है, मुजारे। मुजारे। हमजा तो उसमें भी आ जाता है ना, किसमें, फिल अमर में भी आ जाता है, हमजा तो कहीं भी आ जाता है ना। हम्म। तो ये जी पेश जी। भी होनी चाहिए, फिल मुजारे के आखिर में पेश होती है, निशानी हम्म। होती है। तो ये बदा यबदाऊ तबदाऊ तबदाऊ अबदाऊ नबदाऊ, हम शुरू करते हैं, है ना, नबदाऊ। तो ये सारे फेल यहाँ पे मुतल्लक का काम करेंगे। अल्लाह ताला ने ओपन रखा है, अपनी मर्जी से लगाओ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हम इसको इस तरह तो नहीं पढ़ते ना, हम कहते हैं मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, कहते नहीं पूरा, पूरा कहते हैं ना, शुरू करती हूँ। ठीक। और नहीं तो और कुछ नहीं कहते, तो शुरू तो कहते ही है ना। शुरू जी शुरू मैम। ठीक है खास, क्या? हाँ। हाँ, सात नाम अल्लाह के, शुरू तो लगाते ही है ना। तो वो अशरा हम्म। वो तो लगता ही है। तो फिर ये मुताल्लक बन गया। अब जब ये अशरा मुताल्लक बन गया तो फिर ये क्या बन गया, जार मजरूर। लगाओ। ये अब रफे लव, लगाओ। अब लव बन गया। तो फेल अपने फाइल, अशरा फेल अपने फाइल, अकरा कुछ भी लगाएं, आपकी मर्जी है। आकुलू लगाएं, मैं खाता हूँ, कोई भी लगाएं, अना जमीर वाला ही लगाना है, ठीक है। तो फेल लगाएंगे जी। तो उस वो फेल मुताल्लक बन जाएगा, और ये उसका ज़र्फ़ लव बन के फिर आपका, अगर ये अकेला है तो फिर ये ज़र्फ़ मुस्तकर है, ठीक है। जी। इसके पीछे मुब्तदा लगा के इसको जार मजरूर को खबर भी बना सकते हैं ना, जार मजरूर शिफ जुमला खबर भी बना सकते हैं ना, बन जाते हैं ना, ज़र्फ़ खबर भी बन जाते हैं। अगर पीछे मुब्तदा लगाओगी तो ये खबर बन जाएगा, अगर पीछे फेल लगाओगी तो ये उसका मुताल्लिक बन जाएगा। सही है। जी जार जी। मजरूर जब खबर मौजूद नहीं होती तो फिर वो खुद खबर बन जाते हैं, ज़र्फ़ मुस्तकर बन जाता है। तो अब्दाऊ जब आप लगाओगे यहाँ पे, अब्दाऊ तो फेल है ना, जब आप इब्तदाई लगाओगे, मेरा शुरू करना, मस्दर लगाओगी, इब्तदा उन मस्दर होता है, तो मस्दर जो होता है ये मुजाफ बन सकता है। जब आप इब्तदाई लगाओगे तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह आपका मुब्तदा बन जाएगा। और अब इसकी दो तरीके से तरकीब कर सकते हैं, या तो इसको जार मजरूर शिफ जुमला खबर बना लें, ठीक है, या इसको आप माजूफ खबर का मुताल्लिक बना लें। यहाँ पर एक खबर जो है, बोले कि खबर माजूफ है और उसका ये मुताल्लिक बन रहा है। दोनों तरीके से तरकीब हो सकती है, या तो जो आसान लगती है, इसको मुब्तदा बनाए और इसको क्या बनाए, कायम मकाम शिफ जुमला अब। खबर बना लें, खबर बना लें, ठीक है। जी। जार मजरूर मुब्तदा के बाद यही बनते हैं ना। जी। हम्म। हाँ, जब भी जार मजरूर आता है तो पीछे मुब्तदा आ रहा हो तो वो उसकी खबर ही बनता है। चार चीजें जरफे, ये जरफे मुस्तकर है ना, ठीक है। तो जरफे मुस्तकर जो होते हैं वो चार चीजों के, चार चीजें बनते हैं, हाँ, 4 चीजें बनते हैं मैम। चार चीजें बनते हैं। अगर पीछे जी। मुब्तदा हो तो उसकी खबर बन जाते हैं, नंबर एक। खबर बन। नंबर दो, मुब्तदा होगा तो उसकी खबर बन जाएगा, कायम मकाम शिफ जुमला खबर। सही है, इसकी मिसाल सूरत फातिहा की पहली आयत है। और अगर मुब्तदा नहीं होगा, क्या होगा, दूसरा एक और मौखूफ मार्फा लाएं। ये तो मार्फा ही होगा ना, मुब्तदा तो मार्फा ही होता है ना। जी। तो भी उसकी खबर बन जाएगा, जैसे अलहम्द मार्फा मौ- है ना। हाँ, तो ये हम्म। उसकी खबर बन जाएगा। अब अगर एक और मार्फा आ रहा है कोई, तो फिर उसका वो क्या बनेगा, मार्फा के बाद और क्या चीज बन जाती है, हाल ए, बन जाता है। हाल बन जाता है। मार्फा के बाद फिर जार में जो होता है वो हाल बन जाता है। दूसरी बात, कोई मार्फा इसम आ रहा है और वो उसको आप चाहे वो जमीर है चाहे वो इसम है, मार्फा इसम है, तो वो आपका जुल्हाल बन जाएगा, मार्फा। और आगे क्या बन जाएगा, अगला वाला जार मजरूर जो जिसे आपने ज़र्फ़ मुस्तकर बनाया हुआ है, वो उसकी क्या बन जाएगी, उसका हाल बन जाएगा। सही है। तो जी जी। मार्फा, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। अच्छा, अब आते हैं नकरा। अगर नकरा के बाद आपका जार मजरूर या मुतल्लिक आ जाए तो फिर वो क्या बनेगा, सिर्फ। सिफ्त बनेगी। सिफत। सिफत बनेगा। सही है। और अगर जी इसका मौसूल आ जाए पहले और फिर आगे जार मजरूर आ जाए तो फिर वो क्या बनेगा, सिला। सिला। सिला बने। सिला बनेगा।
تو یہ ظرف مستقر 4 چیزیں بنتا ہے. مبتدا کے بعد خبر، ذوالحال اگر آ رہا ہے جملے میں اس کا حال. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ آپ کا نکرہ کے بعد آ رہا ہے جار مجرور، تو وہ صفت بن جائے گا، صفت وہ بن نکرہ موصوفہ بن جائے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کا یہ والا بن جائے گا. پیچھے آپ کا کیا آ رہا ہو، اسم موصول آ رہا ہو تو صلہ. جار مجرور جار مجرور جو ہوتے ہیں ظرف مستقر جب بنتے ہیں تو یہ 4 چیزیں پیچھے دیکھنا پڑتا ہے. پیچھے کیا ہے، مبتدا ہے تو خبر، ہوں، نکرہ اسم ہے تو صفت، معرفہ اسم ہے تو حال، اور اسم موصول ہے تو صلہ. صلہ. اچھا، یہاں پہ یہ سمجھ آ گیا پورا. یہ ہمارے پاس ترکیب ہوگی بسم اللہ کی. بسم اللہ کی ترکیب جی کیسے کریں گے؟ یہ پورے کا پورا جو ہے نا، یہ میں نے ابھی بتایا نا، یہ موصوف ہے، یہ صفت 1 ہے، یہ 2 ہے، مل کے مرکب توصیفی بن کے یہ مضاف الیہ بن گیا. اس مضاف کا مضاف اور مضاف مل کے اب مضاف کو ملٹیپلائی کریں گے آگے والے سے، ٹھیک ہے؟ تو مضاف جب ملٹیپلائی ہوگا مضاف الیہ سے تو مرکب اضافی بن جائے گا. مرکب اضافی بن کے یہ مجرور بنے گا کس کا، جار کا. یعنی یہ پورا جتنا بریکٹ میں ہے یہ سب مل کے اس سے ملٹیپلائی ہو کے مجرور بن جائے گا. اب یہ جار اور مجرور جو ہے یہ ظرف مستقر بنے گا. یا تو ظرف لغو بنتا ہے، متعلق موجود ہو نہ موجود ہو تو یہ ظرف مستقر. اور پیچھے اگر آپ نے فعل لگایا تو فعل کا وہ بن جائے گا ظرف مستقر. متعلق. ہاں فعل، ہاں اگر آپ، ہاں پھر متعلق بنے گا، پھر ظرف مستقر رہے گا ہی نہیں. جی. اگر آپ نے متعلق لگا دیا پیچھے، اقراؤ اشراؤ لگا ہوں. دیا تو پھر تو متعلق جملے میں آ گیا نا. جی جی. میم. تو بیسیکلی پتہ ہے کیا ہے، آپ اس کو ظرف لغو بھی کہیں. ظرف لغو کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس میں اشراؤ چھپا ہوا ہے. اس کا متعلق ہوں. معذوف ہے، متعلق معذوف ہے. متعلق ہے تو صحیح لیکن وہ معذوف ہے نا، تو اپنے معذوف متعلق سے مل کے جار مجرور کیا بنتا ہے، اس کا متعلق بن جاتا ہے. نہیں؟ جی میم. ہاں، اس کا اللہ تعالیٰ ایسی تو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جار مجرور کو آیت بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں الف لام میم کو بھی ہم نے کسی طریقے سے بنایا ہے، اس کو بھی ہم نے جملہ بنایا ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑا. چھوٹی سی آیت ہے اس میں الف لام میم ہے، اس کو بھی ہم نے مبتدا کی خبر بنایا ہے نا. کتنی طریقوں سے مفعول بھی بنا کے لائی تھی. اس کو کتنی طریقے سے میں نے کروایا، 3 4 طریقوں سے کروایا الف لام میم کو بھی. تو پھر جہاں پہ آئے جی گا پھر میم. اس کو دوہرا لیں گے ایک دفعہ، صحیح ہے. تو یہاں پر جی. آپ اس کو ظرف لغو بنائیں گے کس کا، ایک معذوف فعل اقرأو. دیکھو متعلق فعل معذوف لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، بتائیں مجھے. لکھا ہوا ہے. تو پھر یہ کیا بنے گا، متعلق معذوف فعل کا کیا بنے گا، ظرف مستقر بنے گا. نہیں میم، متعلق بنے گا. نہیں. متعلق کا کیا ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے. جی. ہاں ظرف لغو ہوتا ہے اور متعلق ہوتا ہے. متعلق کا متعلق ہوتا ہے. یہ متعلق ہے، متعلق فعل معذوف اقرأو، 3 چھوڑ دیا اللہ نے. تو یہ بات ہے کہ یہ بنے گا ظرف لغو میں، کیونکہ اس کا فعل معذوف کر دیا گیا اپنی مرضی سے، جو اوپن رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو اوپن رکھا ہے ہمارے لیے، بہت سی چیزوں کو. تو جیسے جیسے آگے جائیں گے بلاغت پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کی سمجھ میں آئے گی. اب الحمد کیا ہے، یہاں پہ بھی جار مجرور آ گیا ہے نا. تو یہ جار مجرور ابھی ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ ظرف مستقر ہے. مستقر ہے. کیوں مستقر ہے؟ میں نے اس کا متعلق نہیں ہے. متعلق موجود نہیں. جملے میں متعلق. موجود نہیں. متعلق موجود نہیں ہے تو یہ ظرف مستقر ہے. اب ظرف مستقر جو ہوتا ہے وہ قرار پکڑتا ہے، جملے میں بنتا ہے، کچھ جگہ لے لیتا ہے، کسی کی خبر کی جگہ پہ لے رہا ہے. اگر پیچھے معرفہ ہو، ابھی میں نے اوپر بتایا، تو ظرف مستقر کیا بنتا ہے، خبر بنتا ہے. خبر. صحیح ہے، صحیح ہے نا. تو جی. یہ خبر بن جائے گا. اور یہ اکیلا نہیں بنے گا، اس کے آگے بھی کچھ ہے. تو لی کو آپ باہر رکھ لیں. اللہ کیا ہے، اللہ اللہ موصوف ہے. موصوف. موصوف ہی بنیں گے جی نا میم. اللہ تعالیٰ. یہاں زید تو آ جی. رہی ہے اس وجہ سے کہ لی کی وجہ سے نا. تو یہ موصوف، اور پھر رب، رب جو ہے اس کی صفت 1. صفت ایک ہی، ابھی ایک ہی صفت ہے تو ہم صفت کہہ لیتے ہیں. یہ موصوف، یہ صفت،
और सिफ्त अकेली नहीं बनेगी, अल आलमीन भी है साथ, मुरक्कब इजाफी बन के सिफ्त बनेगा। मुरक्कब इजाफी बन के सिफत बन रहा है इस मौसूफ की। ये सिफत हो गया पूरा मुरक्कब इजाफी बन के, और ये मौसूफ प्लस सिफ्त मिल के क्या बन गया, मुरक्कब तौसीफी बन के इसका मजरूर बन गया। बाहर जा रहा है ना, तो अंदर वाला पूरा मजरूर बन जाएगा। और वो कैसे बना है, ये आपका रब्बुल आलमीन सिफ्त बना है। रब्बुल आलमीन ही था ना असल में, बाद में रब इसकी सिफत बनने की वजह से जेर लगी है। तो असल में तो रब्बुल आलमीन ही होता है, लेकिन यहाँ जुमले में तरकीब में रब्बिल आ रहा है, क्योंकि ये मौसूफ है, इसके नीचे जेर लगी है, तो सिफत के नीचे भी जेर आ गई है। अल आलमीन सिफत होने की वजह से मजरूर नहीं है, वो मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। समझ आ रही है बात? अल जी आलमीन भी मजरूर है ना, हम्म। मजरूर है कि नहीं है? जी मैम। है, मजबूर है। तो ये आपका सिफत होने की वजह से मजरूर नहीं है कि ये मजरूर है और ये भी मजरूर है तो ये भी सिफत बन रही है, नहीं। ये नहीं सिफत बन सकती अल्लाह की, है ही नहीं सिफत। ये मुजाफ इलैह बन रहा है रब का। तो रब और ये मिलके दोनों मुरक्कब इजाफी बन के, इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है और ये मजरूर है, मुरक्कब इजाफी बन के ये सिफत बनेगा। और किसकी? अल्लाह की। और अल्लाह मौसूफ की। और सिफत मिलके पूरी ब्रैकेट अंदर से जब खुलेगी तो जार मजरूर बन जाएगा। ठीक है, ये जार मजरूर क्या बन गया अभी, ये पूरा जार मजरूर मिलके तो ये क्या बन ये गया? खबर बन गया, खबर बन गया मैम। खबर खबर। बन मैम गया। क्यों? अलहम्दु के लिए क्योंकि खबर। पीछे मारफा इसम आ रहा है, वो मुब्तदा बन सकता है। अब ये तो नहीं कर सकते ये मारफा इसम आ रहा है इसको जुलहाल बना लें तो इसको हाल बना लें, बनना भी तो चाहिए ना जुलहाल, और हाल आगे हाल आना भी चाहिए ना, ये हाल तो नहीं है ना। हम्म। जी मैम। जार मजरूर हाल भी बनता है, पीछे मारफा इसम हो तो उसका हाल भी बनता है, अभी मैंने पढ़ाया है। लेकिन हाल बनना भी तो चाहिए ना। यहाँ तो ये खबर बन रहा है, पीछे मुब्तदा आ रहा है। तो आपने देखा है ये मुब्तदा बन रहा है तो फिर ये खबर बनेगा। और अगर यहाँ पे कोई जमीर वगैरह आ गई है या फिर उसका फिर वो हाल बन जाएगा। या फिर कोई इसम ऐसा आ रहा है जो कि मारफा है। और मुझे बताएं जुल्हाल में क्या क्या होता है, उसकी क्या खासियत होती है, जुल्हाल को कैसे पहचानेंगे, वो क्या क्या होगा? मैम वो फाइल होगा, मा- मफऊल होगा। हाँ हाँ। हाँ, फाइल का हाल हो सकता है, मफूल का हो सकता है, तो फूल फाइल का और मफूल, जी। हाँ। तो मुझे बताएं कि फाइल और मफूल दोनों क्या होते हैं? मैं जब जुमले बनवाती हूँ तो फाइल और मफूल दोनों मार्फा होते हैं ना, जी। कि नहीं होते? चाहे वो जमीर की शक्ल में आए, चाहे वो इसम जाहिर की शक्ल में आए, मैं अलिफ लाम लगवाती हूँ ना उनके ऊपर। जी मैम। हम्म। हाँ, मफूल पे भी लगवाती हूँ, तो वो मार्फा होते हैं। तो फाइल आपका जुल्हाल बने या मफूल जुल्हाल बने, मफूल का भी तो हाल बताया जा सकता है ना आगे, तो वो दोनों मार्फा होते हैं। तो क्या दोनों मरफू भी होते हैं? नहीं मैम। नहीं, फाइल फाइल मरफू होगा जब मफूल का हाल आएगा, तो मंसूब होगा वो उसका हाल आएगा आगे। तो मरफू की कैद नहीं लगानी, बस आपने ये कहना है कि जो होता है जुल्हाल होता है वो मारफा होता है, जुल्हाल पहले आता है, मारफा होता है। उस पर ये मरफू और मंसूब की कैद ना लगाएं, क्योंकि अगर फाइल होगा तो मरफी होगा, मंसूब मफूल होगा तो मंसूब होगा, कोई जमीर भी मफूल होगी तो मंसूब होगी। तो वो कैद कैद इसके ऊपर कैद नहीं लगानी। बस आपने ये कह देना है कि जुल्हाल मारफा होता है और वो पहले आता है। और हाल क्या होता है? वो हाल क्या होता है? मरफू होता है। हाल मरफू होता है। मंसूब। हाल मरफू होता है। हाल नहीं मैम, मरफू। हाल मंसूब 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 होता होता है। है। हाल मंसूब होता है मंसूब हाल। होता है मैम। मंसूब होता है। जी मैम। हाल मंसूब होता है ऑलवेज, अगर जुमले की शक्ल भी आएंगे तब भी वो हम कहेंगे फी महली नस्बिन हाल हाल है। मंसूब। देखिए जब हाल आता है ना मुफरत, तो कैसे आता है बताएं, कोई मिसाल दे। जा आ, जा अनी जैदुन, जैदुन हाँ, ज़ाहिकन दाइकन, हंसता या हुआ। हाँ दाइकन हंसता हुआ आया। बाकियन
یا پھر باقیاً روتا ہوا. ہاں ہاں، تو یہ حال کیا منصوب نہیں ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے. چاہے جملہ بھی ہوگا تو ہم کہیں گے فی، جیسے یبکونا آتا ہے نا، اس حال میں کہ وہ روتے ہوئے آئے، تو اس کو بھی ہم فعل کیا مضارع. کہیں گے؟ جملہ فعلیہ بن کے فی محلی نصب حال بن رہا ہے. اور اگر جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے وہ حالیہ کے بعد، تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ فی محلی نصب حال بن رہا ہے. اور یہ والا فی ہوں. محلی، اس کو فی محلی نصب نہیں کہیں گے، یہ تو ہے ہی منصوب. نہیں کہیں گے. جی جی. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. جی. تو ہر منصوب اسم کو اٹھا کے حال بھی نہیں بنا سکتے، ہر ایک کو مفعول بھی نہیں بنا سکتے، مفعول بھی ہی. اور ہر تمجیز بھی بن جاتا ہے منصوب اسم. جیسے مرادن آیا تھا، تو کوئی اس کو کوئی حال بنا رہا تھا، تو کوئی اس کو مفعول بنا رہا تھا. تو وہ اصل میں کیا تھا؟ تمجیز تھا. تو منصوب اسم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. منصوب اسم کسی یہی تو نہیں ہوتا. تو آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ کیا بن رہا ہے. اگر پیچھے ذوالحال ہے، اب یہاں پر کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ دائکن، زید کا. زید کا. اور یہاں پہ واو ضمیر کا. تو جی. دونوں جگہ مرفوع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. جی. ذوالحال مرفوع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ چاہے ضمیر کی شکل میں چاہے اسم کی شکل میں. اور آگے ہوں. یہ خود کیا بن رہا ہے؟ پورے کا پورا اس کا جو ہوگا نا، وہ اس کا ذوالحال پیچھے ہے. ہوم، وہ ہوم، وہ جو آ رہا ہے جاؤ ہے نا پیچھے. اگر آپ آیت کھول کے دیکھیں تو وہاں پہ جاؤ آتا ہے نا، وہ آئے اپنے باپ کے پاس اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. تو یہ تو حال بن رہا ہے. اس کو تو جملے کو آپ فی معنی نصب حال کہیں گے نا. اس کو ذلال نہیں بالکل. بنائیں گے. اس کو فائل کا حال، فائل کا حال. فاعل کا حال، یہ والی واو کا حال بن رہا ہے. یہ پورا جملہ بن کے فی معنی نصب حال بن رہا ہے، اور یہ اس واو کا حال بن رہا ہے. صحیح ہے؟ یہ واو ذوالحال ہے جاؤ کی، یعنی ہوم ضمیر. ٹھیک ہے، واو ہوم ہی ہوتی ہے نا. ہوں. آپ رسپانس کیا کریں. شائن پیزادہ، آپ رسپانس کیا کریں. تو آپ کی کمزوریاں ہیں، دوسرے نہیں کرتے، جی مجھے جی پتا استاد. ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے، ان کو آتا ہے. آپ کی جی استاد غلطیاں ہیں. صاحب. ٹھیک ہے نا، تو آپ مجھے رسپانس کیا کریں. جی آپ کا جواب سب غلط بھی آئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. آپ غلطی کرتے ہیں، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے، ان کی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی. یہاں پہ ریویژن ہوتا کس ہوں. لیے؟ اس لیے تو ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمی کمزوری ہے اس کو ختم کیا جائے. صحیح ہے. تو اب یہ جی الحمد استاد. مبتدا بنا، اور یہ پورا کیا بنا؟ جار مجرور مل کے. جب بھی حرف جر شروع میں دیکھیں پورے کو مجرور بنا دیں. جار مجرور بن کے یہ آپ کا خبر بن گیا، اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ٹھیک ہے. جی میم. جی. اور یہ دو صفات آگے وہی رب ایک صفات ہے. مالک یوم الدین، یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، ربی بھی مجرور ہے. اور یہ کیوں سارے مجرور ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ربی کیونکہ بھی یہ مجرور ہے. صفت ہے نا. للہ، کی وجہ للہ سے کی وجہ سے. ضرور ہے کہ لفظ ہاں جی. جلالہ موصوف کی وجہ سے. ہوں. لفظ جلالہ موصوف، جب موصوف مجرور ہوتا ہے نا تو آگے ساری صفات مجرور ہوتی ہیں. ہوں. استاذہ مجھے ایک کوشچن سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے جب اللہ لفظ الجلالہ کو موصوف کیسے بنایا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، میں تو ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوں. تو پوچھ لینا تھا نا آپ نے، اٹکی ہوئی کیوں؟ اس کے بعد تو پھر آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا جو کچھ میں نے کہا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں، میرے دماغ میں جا میری ہی بات رہا سنیں، ہے. میری جی بات سنیں، میری بات سنیں. یہ ہے نا اسی کو میں نے بنایا نا موصوف. جی تو جی. موصوف کیا ہوتا ہے؟ ایک موصوف ہوتا ہے جو کہ نکرہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد جار مجرور رہتا ہے. کیا یہ وہ والا موصوف صفت ہے، نکرہ موصوفہ والا؟ نہیں، معرفہ. ہاں. تو ایک تو نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ بن جاتے ہیں نا، نکرہ موصوفہ اس کی صفت بن جاتے ہیں. وہ تو جی جار مجرور اور نکرہ ہوتے ہیں. یہ جو جی. موصوف صفت ہے نا، یہ عام جو موصوف صفت ہوتا ہے، اس میں ذات اور آگے صفت آ رہی ہو. تو کیا اللہ جو ہے یہ اس میں ذات نہیں ہے؟ اس میں ذات ہے. آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟
آپ کہہ رہی ہیں اس کے نیچے زیر کیوں آ گئی ہے؟ یہی مسئلہ ہو رہا ہے نہیں نا وہ کہ تو موصوف کے نیچے زیر تو آ ہی نہیں سکتی. نہیں، وہ بی کی وجہ سے مجھے پتا چل گیا، جار کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ تو اللہ پتا کی چل گیا یہ اللہ کی بس. اللہ کے نیچے زیر اس بی جارہ کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ بسم نہیں، یہ تو مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا، ہاں بسم تو یہ اللہ. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے نا. یہ جو حرف جر جی ہوتا ہے نا یہ تو یہیں تک اثر کرتا ہے، جی جی یہ تو اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے اس کا اثر. تو وہ تو بی کا اثر یہاں تک آ گیا، ختم. جی کتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ حرف جر کا اسم اس کے صرف نیکسٹ تک ہوتا ہے بس، اس سے جی اگلے والے تو پھر مجرور نہیں ہوتا. وہ کسی جی اور وجہ سے مجرور ہو رہا ہے. اب وہ وجہ پتہ کریں کیوں ہے، کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جی تو وہ مجرور ہے تو اس کی جتنی صفات آئیں گی وہ بھی مجرور ہو جائیں گی. آپ اپنا سوال مجھے بتائیں، کیا ڈاؤٹ ہے اس میں آپ کو؟ کیوں نہیں آپ اس کو اس میں موصوف سے آپ موصوف بچانا چاہتے؟ موصوف کیوں بنایا؟ میں نے یہ سوچ رہی ہوں کہ کیوں بنا یہ موصوف، کیونکہ مضاف تھا نا، تو مضاف الیہ بن کے پھر موصوف بھی بنا، دو دو رول ادا کر رہا بالکل، ایک اسم ڈبل ہے. رول ادا کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ بی کا مجرور بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے. جی جی بی کا مجرور بی جا رہا ہے، اس کا مجرور بھی بن رہا ہے نا، جی مرکب جی جاری بھی بنا رہا ہے، بن رہا ہے نا اور مرکب جاری. جی اور آگے جی والے کے لیے یہ اسم جو ہے اس کا مجرور بھی بن رہا ہے اور آگے والے کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے. اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آ رہا، تنوین بھی نہیں آ رہی، جی مضاف بن رہا ہے نا. جی بن اور رہا. اس کا ثبوت اور پکا کہاں سے ہمارے پاس ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ زیر دیکھ کے جی اللہ ہی. یہ پکا ہو گیا اب مضاف، کیونکہ اس کا آگے والا اسم مجرور آ رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، وہ ہمیشہ. اب یہ ڈبل والا اس کا مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور موصوف بھی بن رہا ہے، کیونکہ ٹھیک. آگے صفات آ رہی ہے نا. جی آگے صفات آئیں الرحمن تو پچھلا الرحیم. والا آگے جو اس میں ذات ہوتا ہے وہ موصوف بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا، ابھی وہ دو رول ادا کر رہا ہے، اس لیے نا مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی. دو ٹھیک ہو گیا. سب دو رول ادا کریں، ہوں. سوائے رحمان رحیم یہ ایک ایک رول ادا کر رہے ہیں. جی جی یہ صفت 1 صفت 2 اور پھر یہاں پر یہ تو آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس کو یہاں پر بھی دیکھیں نا، یہاں پر بھی دیکھیں. یہ بھی اس پہ بھی آپ کو یہ ہو رہا ہے نا کہ اگر وہاں ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ والا موصوف کیسے بن رہا ہے. تو یہ موصوف نہیں جی بن سکتا، لی کا مجرور بھی بن سکتا ہے اور موصوف بھی بن سکتا ہے. موصوف بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس میں ذات ہو، صفت نہ ہو. جی صفت کی صفت رب نہیں ہوتی نا. صفت ہے، العالمین اس میں ذات ہے، اس کو ہم نے صفت نہیں کہا، اس کو جی ہم نے اس کا مضاف الیہ بنایا ہے. صفت الگ چیز ہوتی ہے اور اس میں ذات الگ چیز ہوتی ہے. تو مرکب توصیفی جب بنتے ہیں تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے. اب یہ پوری صفت بن گئی، مرکب اضافی بن کے صفت 1 بن گئی، یہ موصوف بن گیا اور یہ دوسری صفت بن گئی. اس کو اکیلے کو نہیں بنائیں گے کیونکہ العالمین بھی ہے نا. جی جی اب عالمین بھی مجرور ہے اور یہ بھی مجرور ہے. یہ اس لیے مجرور ہے کہ یہ اللہ کی صفت بن رہا ہے، جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہ صفت کو ملتا ہے. اور یہ جی کیوں مجرور ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ وہ مضاف الیہ بننے کے لیے مجرور ہے. پھر آپ کی اگلی صفت یہ 1 ہو گئی، یہ 2 ہو گئی، یہ 3 ہو گئی، اور مالکی کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے، یہ صفت 4 ہو گئی. اور یہ پوری صفت بنے گا کمپاؤنڈ مرکب اضافی بن کے. دیکھیں ابھی یہاں پر بھی ڈبل ڈبل رول ادا ہو رہے ہیں. مالک مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف جی مضاف بن رہا ہے. یوم مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے. اس کا ٹھیک مضاف ہو. الیہ بن رہا ہے نا، جی جی اور اگلے والے کا مضاف بن رہا ہے. جی ڈبل رول، رام شام. ڈبل رول. دیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت یہ نہیں ہے، اللہ کی صفت یہ ہے. یوم کہاں سے؟ یوم کیوں مجرور ہے بتائیں؟
मुजाफ इलैह बन रहा है इसलिए। मालिक का मुजाफ इलैह बन रहा है, जी डबल रोल कर रहे हैं, अगले वाले के लिए मुजाफ, पिछले वाले के लिए मुजाफ इलैह। ले तो मुजाफ बनने की वजह से उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ रहा, और मुजाफ इलैह बनने की वजह से उसके नीचे जेर आ रहा है, डबल रोल। अब ये अद्दीन क्या बनेगा, ये मुजाफ इलैह बनेगा। तो ये आपका कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बन गया, जी और ये कंपाउंड मुरक्कब इजाफी बन के अल्लाह की चौथी सिफत बन रहा है। यहां तक ये पूरा यहाँ अलहम थी ना, मुब्तदा था ना। अब ये सारी सिफात जो है, मौसूफ और सिफत मिल के पूरी अल्लाह की सिफात है। ये क्या बन जाएगा, मौसूफ और सिफत, चारों सिफात मिलके मौसूफ अल्लाह की। खबर मौसूफ और सिफत मिलके क्या बनते हैं, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी तौसीफी। बनेंगे। मुरक्कब जी तौसीफी बन के लामू जारा का मजरूर बनेंगे। जी 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 फिर लामू जारा अपने मजरूर से मिलके मुरक्कब जारी बन के इसकी खबर बनेगा। बिल्कुल। ज़र्फ़ मुस्तकर हो के इसकी कायम मकाम शिव जुमला खबर बनेगा। इतना सा जुमला है, जी लेकिन उसको कितना लंबा करके बताया ना। हम्म आपने जुमले को, इसको मुब्तदा बना के छोड़ देना है, ली को बाहर निकाल के हम्म छोड़ देना है, इसको मौसूफ बनाना है, इस पूरे को सिर्फ 1 बनाना है, फिर इसको दूसरे को सिर्फ 2 बनाना है, 3 बनाना है, और फिर चौथे को, ये पूरे जुमले को अपने चौथी सिर्फ बनाना है। ये मौसूफ अल्लाह जो है, ये ली को छोड़ा हुआ है हमने हम्म बाहर, ली को बाहर छोड़ जी दिया है, बिल्कुल। मौसूफ हम्म बनाया, और चारों सिफात से मिलके वो मुरक्कब तौसीफी बन के क्या बन जाएगा, मुरक्कब लामू जारा के लिए मजरूर बन जाएगा। मजबूर बन जाए। फिर जार मजरूर मिलके ज़र्फ़ मुस्तकर होके अलहम की सिर्फ बन जाएगी। आज हम उसकी खबर बन जाएंगे। हाँ हाँ, वो ज़र्फ़ मुस्तकर जो है वो खबर बन जाएगी, उसने करार पकड़ना है ना। जी उसको भी 2 तरीके से कह सकते हैं, खबर बना दें या फिर माजूफ खबर का मुतालिक कह दें, कि खबर माजूफ है और ये उसका जार मजरूर मुतालिक बन रहा है। जार मजरूर के बारे में अगर आपसे सवाल किया जाए कि वो क्या बनते हैं, तो आप कहेंगे मुताल्लिक बनते हैं। जी जार मजरूर क्या बनते हैं, मुताल्लिक मुतालिक। बनते हैं। सही है। तो जब ये जी ज़र्फ़ मुस्तकर बन रहे होते हैं, तब भी वो किसी ना किसी माजूफ के मुताल्लिक ही बन रहे होते हैं। तो हम वो माजूफ नहीं निकालते, हम उनको बना देते हैं, उसको उनको खबर बना देते हैं, शिव जुमला ये। लेकिन दोनों तरीके से कह सकते हैं कि इसको मुताल्लिक बना दें, जार मजरूर को मुताल्लिक बना दें, माजूफ खबर का मुताल्लिक बना दें। एक नंबर 1 तरकीब ये हो गई। दूसरी तरकीब ये होगी कि खुद इसको शिव अलहम मुब्तदा की खबर बना दें। दोनों तरीके से ज़हन में रखें, आपको दोनों तरह की तरकीब मिलेंगी। फिर आप कहेंगे अच्छा ये माजूफ का क्यों बना हुआ है। तो माजूफ का भी हो सकता है, माजूफ खबर का मुताल्लिक, क्योंकि असल में ये मुताल्लिक ही बनते हैं। जार मजरूर क्या बनते हैं, मुताल्लिक ही बनते हैं। 8 चीजों के मुताल्लिक बनते हैं। सही है। जी जी तो अगर वो मुताल्लिक जुमले में मौजूद है तो मुताल्लिक बनेंगे, नहीं मौजूद तो ज़र्फ़ मुस्तकर बन जाएंगे। ठीक है। और उनको फिर हम कुछ बना देंगे जुमले में। अब ये आप आगे चलें तो सिरातल लज़ीना अनअमता ये हो गया। इहदिना की नहीं, इय्याका नअबुदु भी रहता है, ये वाला मालिकी यौमिद्दीन का। इय्याका की जरा मुझे इसकी तरकीब करें। इय्याका में 2 चीजें क्या क्या हैं, इसकी तरकीब किस तरह करेंगी, ये भी सवाल आता है टेस्टों में। इय्या की तरकीब करें। ये मफूल बिही है ना, तो और ये मफूलन बिही तो मुकद्दम है। ऑल टुगेदर बन रहा है ना। मफूलन बी तो वो तो कसर के लिए ऑल टुगेदर बन रहा है। मैंने कहा है कि ये जो इय्या का है इसकी तरकीब करें, तो क्या तरकीब होगी। इसमें काफ क्या है, मफूलन बिही, मफूल। ये कौन लिख मफूल रहा है मेरे स्क्रीन तमीज पे। मैं नहीं मिटा सकती, खुद ही मिटाना पड़ेगा आपको।
اب یہاں بھی مجھے کنٹرول لینا پڑے گا آپ سے. ایاکا کی ترکیب میں آپ کو لکھواتی ہوں، لکھ لیں. ٹھیک ہے. جی مفعولن بھی تو بن رہا ہے کیونکہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے، اور اس کا مفعولن بھی مقدم بن رہا ہے. اور کیوں بن رہا ہے؟ حصر کے لیے، تاکہ جملے میں حصر پیدا ہو جائے. اور بنتا جملہ فعلیہ خبریہ، یا چاہے کا ادھر آ جائے یا شروع میں آ جائے مفعول، ہے نا. تو شروع میں کا تو نہیں لگا سکتے، تو اییا بھی ساتھ لگا دیا. تو اس میں اییا ضمیر ہے، اور کا جو ہے اس کی ترکیب جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کا جو ہے وہ آپ کا کافو خطاب ہے. خطاب اچھا مخاطب کی ضمیر نہیں ہے. مخاطب کی ہوں ضمیریں ہیں نا، کا، کما، جی کم. استاذ ہاں. تو اس کاف کو پھر کاف و خطاب کہتے ہیں. یہ کم بھی ہو جاتا ہے، کننا بھی ہو جاتا ہے، جو بھی اس کو کما بھی بنانا چاہیں تو ایا کما، پوری گردان بنتی ہے نا، ایا ہو جی ایا ہا. تو یہ جب کا آتا ہے تو یہ کا جو ہے یہ کاف و خطاب کہلاتا ہے، اور ایا ضمیر ہے. اس کو لکھیں ورنہ آپ لوگ بھول جائیں گے. اور اس کا سوال آتا ہے ٹیسٹوں میں، پہلے میں نہ آیا تو دوسرے میں، دوسرے میں نہ آیا تو تیسرے میں، نہیں تو جو 5 ٹیسٹ ایک ساتھ آئیں گے ان میں آ جائے گا. کہیں نہ کہیں یہ سوال آنا ہی ہے آپ کو. ایا کا کیا کریں؟ ترکیب. ایا کی ترکیب کریں، ایا کا کی. تو ایا اس میں ضمیر ہے، اور کا کیا ہے؟ کاف خطاب ہے. بس اتنی 2 باتیں آپ نے لکھنی ہیں. تو اس کا نام بھی لکھنا ضمیر کا، جی میم منصوب کام مفعول بھی لکھنا ہے. ایا منصوب ضمیر، بھی لکھنا. ایا کو ضمیر لکھیں. اچھا ایا از اکول، اب میں لکھ کے بھی بتاؤں، ایا جو ہے یہ ضمیر ہے، جی میم. اتنا سا کام نہیں کر سکتے. اور کا کیا ہے؟ کاف جسے اور کہتے کاف ہیں، کاف کاف، خطاب ہے. یہ کاف خطاب ہے. ٹھیک ہے. جی جی بس ہو گیا، ترکیب ہو گئی. ایا کا کیا ہے؟ اس کی ترکیب ہو گئی. ایک ہوتی ہے پورے جملے کی ترکیب، فعل، فاعل، اور پھر یہ مفعول. یہ مل کے ایک جملہ بن گیا، جملہ فعلیہ. کون سا بنا؟ انشائیہ یا خبریہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ بنا. جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ بنا. امر نہیں ہے نا، امر جو ہوتا ہے وہ آپ کا انشائیہ بنتا ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انشائیہ بنا. جب فعل امر آتا ہے تو وہ انشائیہ بنتا ہے. جب یہ والا جملہ ہوتا ہے اس میں خبر دی جائے تو اس کو فعلیہ خبریہ یا اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. اور یہ معطوف علیہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ ابھی میں نے پیپر میں بھی غلطیاں پکڑی ہیں لیکن انہوں نے صحیح بھی نہیں کی، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ معطوف الیہ ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. میں نے کریکشن بھی کروایا لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی. معطوف علیہ آپ کو پیپر میں لکھا ہوا ملے گا. تو آپ میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یہ معطوف علیہ ہی ہے، الیہ ہی نہیں ہے. مضاف الیہ ہی لکھتے ہیں اس طرح، مضاف الیہ ہی. جب مضاف لکھتے ہیں نا تو پھر یہ والا الیہ ہی آتا ہے. معطوف کے ساتھ عین سے آتا ہے. غلطی ہوتی ہے پیپر میں کبھی کبھی، نہیں جی آتی. میم. وہ جن کو کام آتا ہے نا پیپر ٹائپنگ کا، ان کو پھر گرامر اتنی نہیں آتی ہوتی. صحیح ہوتی ہر چیز تو نہیں آتی نا بندے کو. اب مجھے ٹائپنگ نہیں آتی، میں بہت سلو ہوں ٹائپنگ میں، خاص طور پہ اردو ٹائپنگ میں بہت سلو ہوں، کیونکہ میں نے اردو والا کی بورڈ ہی کبھی یوز نہیں کیا. تو ہر بندہ ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا. تو وہ پیپر جی کا جو اینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پروف ریڈنگ، وہ میں کرتی ہوں. میں ان کی غلطیاں ان کو بتاتی ہوں، اس کا کریکشن کر لیں، اس کا کریکشن کر لیں. اب کوئی جو ہے کریکشن سے ہو پاتا ہے، کچھ ان کو سمجھ نہیں آتا. پھر میں کہتی ہوں چلو اسٹوڈنٹ کو بتا دوں گی، اسٹوڈنٹ پہچان جائیں گے کہ یہ معطوف علیہ. آپ کو پتہ ہی ہے نا معطوف علیہ ہی ہوتا ہے، الیہ ہی تو نہیں ہوتا. بتائیں مجھے. جی میں معطوف علیہ ہوتا ہے اینڈ سے. علیہ اللہ ہے نا، اللہ ہے، علیہ جی ہی جی ہے نا. اور الیہ جی ہی میم. مضاف الیہ ہی ہوتا ہے. تو اگر غلطی لکھی ہے پیپر میں تو اس کو آپ اپنی طرف سے صحیح کر لیں.
ایک حمزہ کو بہت زیادہ حمزہ کو اس طرح لکھا جاتا ہے، وہ میں صحیح کرواتی ہوں، لیکن وہ بھی ان کو پتہ نہیں عادت پڑی ہوئی ہے یا کیا، حمزہ کو اس طرح لکھا جاتا ہے، حمزہ استفہام، یہ والا تو حمزہ نہیں لکھا جاتا، ہاں سے حلوے والی ہاں سے، صحیح ہے؟ تو یہ بھی غلطی ہوتی ہے، اب آپ نے خود ہی سمجھنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے. پھر آپ بولے یہ حمزہ کیا ہے بھائی، ہم نے تو کبھی یہ والا حمزہ دیکھا ہی نہیں، یہ والا حمزہ تو یہ وہی حمزہ ہے جو یہ چشم نام ہے. ہاں یہ جی نام کے لیے شاید آتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، یہ شاید جی نام کے لیے آتا ہے اور یہ دوسرا حمزہ ہوتا ہے. ہوں تو بہرحال آپ سمجھ جائیں، آپ کو میں نے بتا دیا. تو اب آپ کا کیا ہے، یہ جملہ بن گیا، اور یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ جب بھی واو عاطفہ آتی ہے تو پیچھے والا جملہ معطوف علیہ ہی بن جاتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، واحد مفرد اسم بھی تو بن سکتا ہے نا، واو عاطفہ سے پہلے مفرد اسم ہو، حرف عطف ہو رہا ہو اگلا والا، مرکب اضافی بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کا معطوف علیہ بن جائے گا، واو سے پہلے جو بھی چیز ہوگی معطوف علیہ بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو جی ہوگی وہ معطوف بنے گی، یہ معطوف بنے گی، اس کے ساتھ علیہ ہی بھی لکھنا ہے. مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا، پتہ نہیں کلاس میں ہے کہ نہیں ہے، معطوف علیہ اور معطوف مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جی تو میم میں نے واو سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہی ہوتا ہے، اور بعد میں جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، دونوں مل کے جملہ معطوفہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ معطوف علیہ پلس معطوف، یہ دونوں مل کے ایک جملہ بن جاتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس جملے کا نام جملہ فعلیہ خبریہ کچھ نہیں ہوتا، اس کا نام جملہ معطوفہ ہوتا. اچھا، یہ دونوں مل کے جملے کا کوئی پارٹ بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی پارٹ نہیں بن رہے، کیونکہ پیچھے کوئی جملہ ہے ہی نہیں جس کا پارٹ بنے، تو پھر اس لیے اس کو جملہ معطوفہ بنا دیا. اگر پیچھے کوئی فعل فاعل ہوتا تو یہ اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ بنا دیتے نا، لیکن پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کے جملہ معطوف ہے. اہدینا الصراط المستقیم، اہدی جو ہے یہ فعل امر ہے، ہدا یہدی سے ہے نا، تو ہدا یادی کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ ہدا یادی تو ماضی بن جائے گا، ہدا یا ہوتا ہے اصل میں، دیکھیں ہدا یا. اب مجھے بتائیں یہ فعل صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ غیر غیر صحیح. صحیح اور غیر صحیح میں کیا ہے؟ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، ناقص ہے یا ناقص محمود ہے، ناقص ہے. اور ناقص میں کیا ہے؟ ناقص یائی یائی ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو ناقص واوی ہوتا. جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اب آپ کو آ گئی. اب یہ ماضی بن رہا ہے، یہ اصل میں تو تینوں پہ زبر ہے نا، ہے نا؟ ہوں ہدا یا ہوتا ہے نا، فعلا کے وزن پہ جی بناتے ہیں نا ماضی، جی فعلا ہدایہ یہدی فعلا کے وزن پہ ماضی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے بھرپور جواب دیا کریں. فعلا کے وزن پہ ہدا یا بنے گا، یا سے پہلے زبر ہو تو حرف علت متحرک ہو، اور پیچھے زبر ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حرف الف میں علت کو بدل دیتے الف میں بدل دیتے ہیں، الف الف میں بدل دیتے ہیں. لیکن جی میم. جب یا ہوتی ہے نا، ناقص یا ہی ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو گراتے نہیں ہیں، جی اس کو یا کو نہیں گراتے، صرف الف ڈال دیتے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا بن جی جائے گا؟ ہدا ہدا بن جائے گا. اب مضارع بنائیں گے تو یہدی یو بنے گا نا، ہوں کون سے وزن جی پہ؟ تہدیو. تہدی یو کہاں سے آ گیا؟ یفعلو. یفعل یفعل اچھا، اس کے اوپر کھڑا زبر ڈالیں نہ ڈالیں، یا سے پہلے زبر ہو تو کھڑی زبر ہی پڑی جاتی ہے نا، یا سے پہلے زبر ہو تو، ہے نا؟ تو یہ ہدا ہی جی پڑھا استاد جائے گا نا، ہدائی تو نہیں پڑھا ہوں جائے گا، ہدا ہدائی تو نہیں پڑھیں گے. نہیں. نہیں پڑھیں ہاں ہدا ہی پڑھیں گے. اور جس کو یہدی یوں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یا پر یا پیش ہدی نہیں ہاں یہدی پڑھیں گے، یا اپنے اوپر پیش نہیں ٹکنے دیتی، پیچھے زیر ہو تو وہ گرا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ یہدی بن گیا، اصل میں یہدی یو ہے. اب اس کا مصدر کیا ہے؟ ہدایتن بھی مصدر بتاتے ہیں، اور ہدن بھی مصدر بتاتے ہیں. ہدن بھی کیا ہے؟ مصدر ہی ہے، اور جو مصدر ہوتا ہے وہ اسم الفاعل کا معنی بھی دیتا ہے، اسم المفعول کا معنی بھی دیتا ہے.
अच्छा, तो ये समझ में आया आपको? तो मस्तर जो होता है इस्मुल फाइल का मानी में, यानी हादी युन के मानी में ये मस्तर है, हिदायत देने वाली है तो मस्तर, लेकिन मानी दे रहा है इस्मुल फाइल हादी युन का। हादी युन कैसे बन गया बताएं? फाइल उन के वजन पे मस्तर बनता है ना, इस्मुल फाइल बनता है ना। तो हा दाल या को हमने जब फाइल उन के वजन पे डाला तो क्या बन गया? हादियुन। हाँ, हादियुन। हा दाल या हादी युन बन गया। तो हादी युन इस्मुल फाइल है। सही है। इस्मुल मफूल क्या बनेगा? इस्मुल हादियुन। मह हादा या से इस्मुल मफूल क्या बनेगा? मफूलन के वजन पे बनेगा ना, महदी। महदीयुन। महद। महदून। ये जी मैम। महदीयुन जिसको हिदायत दे, महदी। अब या से पहले जो है ना जेर ही आती है, आप जबर ना लगाने की कोशिश करना। जी महदीयुन। और ये महदीयुन जो है ना, ये इसमें फाइल नहीं है, इसमें मफूल है। आप ये जेर देख के समझे कि ये आपका क्या है, इसमें फाइल इसमें है। मफूल। वो जो मीम से बनता है ना, वो बनता है आपका मजीद फी में, जहाँ जेर आती है या मीम आती है, अलामत मुजारे को आप मीम में चेंज करते हैं आगे दो पेश, वो तो मजीद फी से आती है। और ये तो मैंने मफूल उनके वजन पे बनाया है, सुलासी मुजरद का मफूल, है ना। तो ये जी जेर के साथ ही मफूल का मानी दे रहा है। हम्म, सही है। जेर जी के मैम। साथ जी उस्ताद। ये मफूल उनके महदून। वजन पे बना हुआ है, तो ये महदीयुन बना हुआ है। तो मफूल उनके वजन पे डाल के देख लें आप, डालें क्या बनेगा? मह महदयुन बनता है, लेकिन या की महदूयुन। वजह से। जी महदूयुन बन। महदून। महदयुन बनता है। महदयुन नहीं बनता, महदीयुन नहीं बनता। और वो उसमें अब या है ना, तो उससे पहले जेर ही आती है ना, वो लगानी है जी हमें। जी तो बहरहाल उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है, आप इसमें फाइल हादीयुन तो आपने बना लिया। तो ये जो मस्तर हुदन है, ये इसमें फाइल का मानी दे रहा है। सही है। तो मस्तर जो होता है वो इसमुल फाइल का मानी भी दे सकता है। मस्तर जो होता है इसमुल फाइल और मफूल दोनों का मानी देता है। ये बार बार मैं जुमला दोहराती रहती हूँ। जी मैम। अच्छा, सही है ना। तो अब इसमें हमारे पास ये इहदी, तहदी से फिर जब हमने बनाया, फिल अमर बनाने का नया नया तरीका सिखाया मैंने, तो ये इहदी बन गया। तहदी था ना, जी मैम। तहदी ये पहले से ही साकिन है। तहदी यू था, लेकिन या जो है उससे पहले जेर आ जाए तो वो सुकून में बदल जाती है। तो ये तहदी बन गया। अब इसका आपने फेले अमर बनाना है, तो ये हो गया ता गिर गया। और ये वाला जो है, अब इसके ऊपर पहले से सुकून है, तो इसको मजजूम करना है। तो जब हम नाकिस को मजजूम करते हैं तो हम क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं में ये हर फेल। या को गिरा हज़फ देते करते हैं। हैं। हर्फ को ही ड्रॉप कर देते हैं, चाहे वो हो चाहे या जी। हो, या हो जी। उसको ही ड्रॉप कर देते हैं, ताकि पता हम्म। लगे कि ये क्या है। अच्छा, ये जेर बता रही होती है कि आगे से या गिरी हुई है। तो अब जी। क्या है, यहाँ पे हमजा लगाएंगे। हमजा के नीचे कौन सी हरकत आएगी? देर आइन आएगी। कलमी ये मदद। जी। फिर इन कलमे की हरकत जेर आ जाएगी, तो इहदी बन जाएगा। इहदी जो है ये आपका फिल अमर है, फाइल इसके अंदर ही है। तहदी सातवां सीगा है, सातवें सीगे में अंता फाइल होता है। सही है ना? बताने की जरूरत तो नहीं जी। है ना। जी मैम। नहीं। फेल, ये फेल अमर होता है, ये अलग से कोई फेल नहीं होता। ये फेल मुजारे के सातवें सीगे से बनता है। सातवें, आठवें, मुखातिब। नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, उन्हीं सीगों से बनता है। जो मुखातब के 6 सीगे होते हैं उनसे ही बनता है। लाए नाही भी उन्हीं के जी 6 सीगों पे ही दाखिल होता है। जी उन्हीं को ज्यादातर उनको क्या कहते हैं, ला तुफसे दू फिल अर्द, है ना। तुफसे दू ना होता है, हम्म। तुफसे दू बन जाता है, मजलूम होता है। तो यहाँ पे भी मुजारे मजलूम हुआ ना, और फिर अमर बनाते हुए फिर वो भी गिर गया, या भी गिर गया। तो इहदी इसमें अंता फाइल है, ना जमीर क्या बनेगी? मफूल। हाँ, ना जमीर से पहले अगर हरकत आ जाए तो वो मफूल बनती है, सुकून आ जाए तो वो फाइल बनती है।
अगर फालना के वजन पे होगी ना, दरबना, हम्म। फअलना, दरबना, है ना, तो वो क्या जी। होगा, फाइल। ना जमीर फाइल होगी। फाइल। और फाइल अगर बनेगी। फअलना होगा, अगर फअलना होगा, जबर आ रही है पीछे ना जमीर से पहले, तो ये फिर मफूल बनेगी। मफूल बनेगी। सही है। इसको फिर आप जी। मफूल बनाएंगे, आप फाइल नहीं बना सकते, ये मंसूब है इस वक्त, और यहाँ पर ये मरफू है क्योंकि फाइल मफूल। बन रही है। इससे पहले सुकून आ रहा है, जबर आ जाए तो मफूल बनती है। जैसे खाना खाने की दुआ में क्या आता है, जा अला ना आता है। आप मुझे बताएं, जा अला ज- ना में ना जमीर क्या बन रही है? परवीन आप फाइल बन बताएं रही है। मुझे, परवीन, शनाज फाइल। परवीन। जी मैम, ये मफूल बन रही है। मफूल क्योंकि उससे पहले हरकत आ रही है, जी उसने बनाया हमको, है ना, जी मैम। जी। मुसलमान, मुसलमान बनाया। और हम इसको क्या पढ़ते हैं, जालना, हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। हम्म। तो हम इसको जल्दी में जालना कर देते हैं, गलती करते हैं दुआ पढ़ते हुए भी। जी तो जी जी जी। बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को चेक करें वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो जालना, जालना दोनों में फर्क है। जालना का मतलब है उसने बनाया हमको, को का तर्जुमा आ रहा है तो मफूल में, और जालना हमने बनाया, सुकून आ रहा है तो जी हमने मैम। बनाया। तो ये बात अब क्लियर होगी। उसके बाद आपका इसराता क्या बन जाएगा, एक मफूल ये बन गया, क्योंकि फाइल तो अंता बन गया था ना, दो दो तो फाइल नहीं बन सकते, है ना। जी तो हम्म। ये मफूल बन गया, और फिर ये दूसरा मफूल बन गया, मुरकब तौसीफी बन के। तो इहदी फेल अपने मफूल, फाइल अंता, मफूल वन और मफूल टू से मिलके ये क्या बन गया, जुमला फेलिया इंशाइया। मैम इसे मकबूल बिही क्यों कहते हैं? ये मफूलन बिही का क्या मतलब होता है, बिही का क्या मतलब होता है, साथ बिही उसके, साहब। साथ उसके, जी। साथ उसके। तो ये जो मफूल होता है ना, जो फेल फाइल के बाद मफूल आता है, जब आप बाकी मफूल पढ़ेंगे तो फिर आपको मफूलन बिही का मतलब भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जी मफूलन मैम। फीही भी होता है, मफूलन माहू होता है, मफूलन लाहू होता है, मफूल मुतलक होता है। तो सब जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये वाज़ेह हो जाए कि इसको मफूलन बिही क्यों कहते। ये सबसे पहला मफूल होता है जो जुमले के अंदर होता है। जब फेल मुताद्दी होता है तो इसका लाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जी। तो फेल लाजम हो तो जरूरत नहीं होती। अब ये फेल मुताद्दी था ना, तो इसमें कुछ फेल मुताद्दी ऐसे होते हैं कि उनका एक से जो ना पेट नहीं भरता, एक मफूल से, उनको दो दो मफूल चाहिए होते हैं। तो एक जैसे मैम ये वो इहदीना मकबूल होता है ना मैम, है, जिस पे डायरेक्ट असर पड़ता है, किसी भी काम का डायरेक्ट असर पड़ता है, वो मकबूल भी ही होता है। जिसका डायरेक्ट असर पड़ता है किसी काम का। वो जब डायरेक्ट मफूल होता है, सारे ही जी। डायरेक्ट होते हैं, तो मफूल फी भी बिही। होते हैं, जी। हाँ। बिही। इनडायरेक्ट मफूल जी। वो होते हैं जो कि, जी। एक तो वो होते हैं जो सिले के बाद आते हैं, जो उसको तो मफूल कह ही नहीं सकते, वो तो जार मजरूर बन जाते हैं ना, सिले के बाद जो आते हम्म। हैं। इनडायरेक्ट मफूल वो होता है जो वाव के बाद आ रहे होते हैं। अब देखें, जैसे ये किसी भी वाव के एक्शन बाद, का ना असर पड़ रहा है, तो वो मकबूल बिही हो गया। और हाँ, मकबूल बिही तो वो होते हैं ना, जो टाइम और जगह बताते हैं, मकबूल बिही वो हो नहीं, जाते हैं। फेल, बिही। फेल के फाइल का असर किस पे पड़ रहा है? एक होता है मकबूल फेल बिही के पर। फाइल का, एक होता है फाइल का असर मफूल। सिर्फ फेल तक रहता है ना। हम्म। फाइल का जी असर मफूल लाजिम। तक चला जाए तो वो मफूलन भी ही होता है। हाँ जैसे, जी, वही कह रही जैसे दरबा, सॉरी, जैसे हूँ। जलसा, वो बैठा, है ना। मतलब समझ आ गया ना, अब ये फेल क्या है, इसका असर फाइल तक ही रहा है, बस ये कंप्लीट हो गया। जी। एक फेल होता है जिसका असर आगे मफूल तक भी जाता है। मुतादी का मतलब नहीं समझते, एक दूसरे से बीमारी लगती है जो, है ना। जी। जब बीमारी एक बंदे से दूसरे बीमारी, दूसरे बंदे तक चली जाए तो वो मुतादी बीमारी होती है, जैसे नजला जुकाम चिपक ये हो नहीं जाता हुआ। है। मकबूल। हाँ। तो अगर फाइल का, फेल फेल का असर फाइल से होते होते आगे मफूल तक चला जाए तो वो फेल मुतादी कहलाता है। और वो जो लफ्ज होता है जिसके ऊपर असर हो जाके फेल के फाइल का असर पड़ा है, वो मफूलन बिही कहलाता है।
मफूलन बिही क्या होता है? जिस पर फेल के फाइल का असर पड़ता है जाके। मसलन हामिद ने क्या खाया? खुबस खाया, ठीक है, खाया। अब इस जुमले में खाया तो फेल है, हामिद फाइल है, तो फाइल के खाने का असर खुबस तक चला गया ना, जी जी तो अब मैम। खुबस क्या होगा? ये मफूल होगा। मफूल होगा। तो फेल के फाइल का असर जिस पे पड़ता है वो होता है मफूलन बिही। डायरेक्ट तो होता ही है ये। इनडायरेक्ट मफूल, मफूल जो होता है जो वाव के बाद आता है। अभी देखेंगे दोनों ही डायरेक्ट मफूल है क्योंकि वाव नहीं आ रही। ये मफूल 1 है और ये मफूल 2 है, दोनों ही डायरेक्ट हैं। अगर इनके बीच में वाव आ जाए तो फिर ये असल मफूल जी होगा और ये वाला जो होगा इसका तफ पड़ रहा होगा उस पर। अगर वाव नहीं है तो डायरेक्ट मफूल है। जी अच्छा। सही है ना? तो जो वाव के साथ जी आते हैं वो इनडायरेक्ट मफूल होते हैं। फिर पहला वाला मफूल होता है, बाकी का उसके ऊपर अतफ पड़ रहा है, अतफ पड़ रहा है, तो उन सबको मफूल नहीं कह सकते आप। इन दोनों के बीच में वाव नहीं है तो इनको आप क्या करेंगे? ये डायरेक्ट मफूल है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे इहदीना, पहला मफूल, दूसरा मफूल और ये सिफत इसके साथ ही मिल जाएगी। मुरक्कब तौसीफी बन के ये मफूल बनेगा, मौसूफ सिफा मिल के। अब इसमें मौसूफ की खासियत है ना, ये इसमें जात है और ये सिफत है, तभी मुरक्कब जी तौसीफी बनेगा। जी अगर ये भी सिफत होता तो मुरक्कब तौसीफी नहीं बन सकता था। जी मैम। और बाकी मुरक्कब तौसीफी नकरा भी हो सकता है, सिरातुल मुस्तकीमुन भी हो सकता है, सिरातुल मुस्तकीम, सिरातम अल मुस्तकीमा भी हो सकता है, जेर भी आ सकती है, जबर भी आ सकती है। चारों हालतों में बैलेंस होंगे, बस ये बात है। और पहली 4 हालतों में बैलेंस होंगे और पहला वाला इसमें जात होगा। अगर वो इसमें जात नहीं है तो फिर आपका मुरकब तौसीफी हो ही नहीं सकता। सिफत की सिफत कभी नहीं आती, मौसूफ की सिफत आती है हमेशा। जी मैम, मौसूफ जो इसका होता है मतलब किसी चीज का नाम होता है। अच्छा, फिर सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम यहाँ खत्म हो गया आयत। सिराता क्या है? मुजाफ है, जी मैम। क्योंकि इसमें मुजाफ की खुसूसियात हैं। अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और मुजाफ पे जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ रही है, तो जबर आ रही है। अब जबर क्यों आ रही है? क्यों आ रही है जबर? पीछे तो कुछ भी सिरात नहीं है ये जबर पहले देने वाला ना। बदल मुदाफ हाँ, बदल नहीं बन है। रहा हाँ, है। अगर पीछे कोई और वजह ना हो तो फिर वो बदल बन रहा होता है। यानी ये सिराता भी उस सिराता पे बदल है, बदल है उस सिराता का। तो ये मुबदिल मिन्हु हो गया और ये बदल हो गया। ये मुबदिल मिन्हु हो गया और ये बदल हो गया। तो जी बदल भी वही इराब लेता है, जैसे सिफत वही इराब लेती है जो मौसूफ लेती है, तो बदल भी वही लेता है जो। अच्छा, अल्लाह जीना सिराता फिर मुजाफ बना तो अल्लाह जीना क्या बनेगा? मुजाफ इलैह बनेगा ना। मुजाफिर जी मुदाफ अलैहि अब लेकिन मैम। हाँ, मुजाफ इलैह अकेला नहीं बनेगा, इससे मौसूल अकेला कुछ भी नहीं बनता, अपने जी सिले मैम। के साथ बनता है। तो सिला क्या है? अनअमता अलैहिम। इसमें फेल है, फाइल है और ये मुतालिक है, मुतालिक के फेल है, तो ये पूरा जुमला फेलिया बन के खबरिया ये सिला बन गया। अब ये मौसूल और सिला मिल के क्या बनेगा? इस सिराता मुजाफ का मुजाफिला बनेगा। मुजाफिल है जी अब गैरी के नीचे जेर आ रही है, गैरी को जेर किसने दी है? मैम ये भी मुदाफ इलेही बन रहा है, ये मुदाफिला है। जैसे गैर गैर हमेशा मुजाफ बन के आता है। जी मैम अल्लजीना है ना मुदाफ इलेही, तो ये भी का तो ये किसका मुदाफिला बन रहा है? बताएं किसका बन रहा है? पीछे मुजाफ है कोई? सिराता सिरा सिराता का ही ना मैम। ये सिराता का नहीं। मुजाफिला बना के हमने जुमला फिलिया खबरिया बना दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। गैर मुजाफ बन रहा है, मुजाफिला नहीं बन रहा, नीचे लिखा हुआ भी है। अल्लाह जीना को का आपने इसको बदल कह देना, अल्लाह जीना का बदल कह देना। जी मैम। वो मजरूर है मुजाफिला होने की वजह से, तो ये गैरी भी मजरूर है, तो इसको गैरी को उसको बदल कह दे। मुजाफ पे
اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ مضاف ضرور بن رہا ہے، مضاف الیہ نہیں بن رہا، مضاف الیہ یہ بن رہا ہے۔ کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو صرف مضاف بن کے آتے ہیں، ان میں سے غیرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، صحیح ہے۔ تو غیرہ مضاف، المغضوبی مضاف الیہ، تو غیرہ کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ پیش بھی آ سکتی تھی، زبر بھی آ سکتی تھی، تو وہ اس کا بدل بن رہا ہے۔ یہ مجرور ہے تو یہ والا بھی مجرور ہے۔ جی میم ٹھیک ہے۔ وہ جو کہ انعام والے، جن پر انعام کیا گیا، نہ جن پر غضب ہوا، تو یہ پورا کیا ہے؟ غیرہ کیا ہے؟ اس کا بدل ہے، یہ مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، اس لیے زیر آئی۔ پھر مغضوبہ علیہم، تو یہ مغضوب کیا ہے؟ اسم المفعول ہے نا، جی میم، اور یہ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے مغضوب؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے، واحد۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ جی، کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے؟ یہاں سے پتہ چل رہا ہے، ان سے پتہ چل رہا ہے میم۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ مغضوب علیہم جب آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے المغضوب علیہ، وہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک بندہ ہے جس کے اوپر غضب ہوا ہے، جی جی ضمیر میم، چینج ہوتی ہے۔ مغضوب جب اسم المفعول بنتا ہے نا، دیکھیں اصل میں کیا ہے؟ غضبہ، غضبہ علیہ، علیہ کیا ہے؟ یہ صلہ ہے، غضبہ، غضبہ علیہ یہ صلہ ہے فعل کا، اور یہ مفعول تھا، لیکن یہ اللہ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا۔ اب اس کو ہم غاضبہ کا متعلق کہیں گے نا، یہ تو فعل ہے، ماضی ہے، اس پر غضب ہوں کیا، اس غضب کیا اس پر، ہم نے اس فعل کو مفعول میں غین دوات با سے ہم نے اسم المفعول بنانا ہے، تو کیا بنے گا؟ المغضوب بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب جی، یہ اس کو جمع کا صیغہ بنانا ہے، تو اس کی اگر اس کو واحد ظاہر کرنا ہے تو ہم اس ضمیر کو علیہ ہی کہیں گے، ہوں ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ پہ غضب ہوا ہے تو مغضوب علیہ، اگر دو ہیں تو علیہما ہو جائے گا، اگر بہت سارے ہیں، دو سے زیادہ ہیں، تین سے زیادہ ہیں، تو پھر ہم اس کو المغضوب، یہ ضمیر چینج ہوتی جائے گی، ہوں یہ نہیں چینج ہوگا۔ یہ تو مغضوب کے وزن میں مغضوب بن گیا، اس میں مفعول بن گیا۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم مفعول جو ہوتا ہے، اسم مفعول کا مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے نا، مغضوبانی ہے نا، مغضوبونہ، مغضوبینہ بن سکتا ہے نا، جی میم، بعض دفعہ اس کو نہیں چینج کرتے، جس اسم مفعول کا صلہ آتا ہے نا، اس کا پھر مغضوبانی یا مغضوبونہ، مغضوبینہ نہیں بنتا، اس کی صلہ جو ہے اس کے آگے ضمیر کو چینج کرتے رہتے ہیں اکارڈنگلی۔ اگر واحد بنانا ہے مغضوب کو تو علیہ ہی کر دو، اگر لڑکی کو کرنا ہے تو علیہا کر دو، صحیح ہے علیہ، نا، سمجھ آئی جی ہے نا؟ تو اس کو جی نہیں میم، چینج جی، کرنا، جس بھی اسم المفعول، جو بھی مفعول اس صلے کے ساتھ آتا ہے اس کی ضمیر چینج ہوتی ہے جمع بناتے ہوئے۔ کچھ جو ہوتے ہیں جیسے ظالمونہ ہے، ظالمینہ ہے، وہ صلے کے ساتھ تو نہیں آتا نا، تو اس کو تو پھر ہم اس طریقے سے جمع بنائیں گے، ظالمانی، ظالمونہ، ظالمینی ہے نا، ظالمینہ وہ بنائیں گے۔ لیکن جو غضبہ اللہ ہوتا ہے، ہمیشہ غضب کسی کے اوپر ہوتا ہے، اس کا جو مفعول ہوتا ہے اس کے حرف جر کی وجہ سے کہ مجرور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا غضب کسی کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اللہ لانا ضروری ہے، جیسے اللہ ابصارہم وعلی سمعہم ہے نا، پڑھا ہے نا، جی، تو وہاں جی، پہ اللہ سے آ رہا تھا نا، تو وہاں پہ بھی آ یہی ہو رہا رہا ہے، تھا۔ جب بھی کوئی اسم مفعول صلے کے ساتھ آئے گا تو پھر ہم اس کو تو واحد ہی رکھیں گے، اس صلے کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے اس کو ہم چینج کرتے رہیں گے۔ ایک بندہ ہے تو علیہا، علیہ، المغضوبی علیہ کر دیں گے، دو ہیں علیہما کر دیں گے، جمع ہے علیہم کر دیں گے، اس کو ادھر ہی رہنے دیں گے، اس میں مفعول ہی رہنے دیں گے۔
बात समझ में आ गई है? क्योंकि ये सिले के साथ आ रहा है। बगैर सिले के है तो फिर आप मगदूबूना भी लाएं, मगदूबीना भी लाएं, जो मर्जी है करें। इसके नीचे जेर क्यों आई है मगदूब के नीचे? ये मुजाफ अलैह है। क्योंकि ये मुजाफ हाँ, इलेह बन रहा है। गैरा हमेशा मुजाफ बन के आता है, मुजाफ इलैह कभी नहीं बनता। वो गैरा हमेशा मुजाफ बनता है, उस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं होती है, वो मुजाफ बनता है, और ये मुजाफ इलैह बन रहा है। सही है। तो अब जी ये जो है इस्मुल मफूल है, और ये अलैहिम क्या है, ये इसका मफूल का मुतालिक नहीं होता। जार मजरूर 8 चीजों के मुतालिक होते हैं, तो क्या वो इस्मुल मफूल के होते मुतालिक नहीं होते? जी मैम होते होते हैं। हैं। और जो इस्मुल मफूल पे अलिफ लाम आता है उसको क्या कहते हैं? इस्मुल मफूल और इस्मुल फाइल पे जो अलिफ लाम आता है उसको इस्मुल क्या कहते हैं? इस्मुल मफूल होता है, इस मस्दर बनता है। इस्तगराकी लाम, लाम तारीफ है। नहीं इसमें मैं इस्तगराकी, लाम इस्तगराकी। इस्मुल नहीं फाइल मैम, इस्मुल मफूल पे जो अलिफ लाम आता है उसको क्या कहते हैं? इसमें इसमें इसमी इसमें मैम, कहते हैं। इसमें कहते हैं। जी मैम सॉरी। जी मैम इसमें कहते इतनी जल्दी भूल जाते हैं। हैं। सॉरी सॉरी मैम। अब भी नहीं भूलेगा, अभी डांट पड़ी ना इतनी ज्यादा। इस्मुल मफूल और इस्मुल अल मुस्तकीम पे भी अलिफ लाम आ रहा है ना? जी जी सिर्फ दारे मदरूब पे तो नहीं आ रहा, इस्मुल फाइल और मफूल पे, ये भी इस्मुल मफूल बन रहा है, इस पे भी अलिफ लाम आ रहा है। अब ये अलिफ लाम जो इस्मुल मफूल पे आता है, वो ना वो लामे तारीफ होता है, ना वो क्या है, कौन कौन से लाम हरफी होता है, ना कुछ होता है, वो इसमी होता है। और वो अल्लाह जी का मानी देता है, इसम मौसूल का मानी देता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं ना इसमें अलिफ लाम, इसमी के अलावा जितने भी अलिफ लाम होते हैं वो हरफी कहलाते हैं। जी मैम। मैं तो आज ये पढ़ा ही नहीं रही थी, मैंने कहा ये तो आपको याद होगा, कल ही तो पढ़ाया। ये तो वैसे ही मैंने सवाल कर लिया कि अल मखदूब पे जो अलिफ लाम आ रहा है ये कौन सा है, अल मुस्तकीम इस्मुल फाइल है उस पे जो आ रहा है वो कौन सा है। तो अलिफ लाम इसमी होता है, अल्लाह अलिफ जी लाम का मानी इसमें देता है, मगर वो इस्तगराकी कहेंगे ना उसको, है। नहीं? नहीं इस्तगराकी जिन, देखिए मेरी बात सुने, गौर से सुने। ये जो बाकी है ना, जो अलिफ लाम इसमी के अलावा जितने भी अलिफ लाम आएंगे ना, चाहे वो इस्तगराकी है, वो जिनसी है, अहद ज़ेनी है, आदे खारजी है, वो सारे किसकी किस्म है? वो अलिफ हरफी लाम के। हरफी की किस्म है। जी मैम। वो अलिफ लाम हरफी की किस्म है वो। जी मैम इसमें 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 सिर्फ एक ही फैज होता है जो इसमें फाइल और मफूल पे आता है। एक होता है इसम और एक होता है हरफ, है ना? दो ही तरह का जी होता है ना, अलिफ लाम इसमी है, अलिफ लाम हरफी है। ठीक है। जी अब मैम। ये इसमी जो होता है तो इसमें फाइल और मफूल पे अलिफ लाम आता है जो अल्लाह जी का मानी देता है। जो हरफी होता है वो ही इस्तगराकी होता है। उसकी 4 किस्में बताई हैं मैंने हरफी की, इस्तगराकी, और कम कौन सी है, जिनसी, जिनसी, अलिफ लाम, और अहद अहद ज़हनी। ज़हनी और आदे खादी। इतना तो आसान करके पढ़ाया मैंने ये। अलिफ लाम की सिर्फ 2 किस्में हैं, कोई तीसरी किस्म इसमें नहीं है। या तो वो इसमी होता है या वो हरफी होता है। जी मैम। हरफी के आगे से 4 किस्में हो जाती हैं। तो ये वाला जो है ये इसमी है, जो अलिफ लाम इसम फाइल और मफूल पे आ रहा है। ये इसमुल फाइल है, इस पे भी अलिफ लाम आ रहा है। ये अल्लाह जी का मानी दे रहा है। इसमुल फाइल और इसम मफूल पे आने वाला ये मार्फा बनाने वाला नहीं है। जी मैम। मार्फा बनाने वाला तो अलिफ लाम कोई होता ही नहीं है। ये कहां से आपने सीखा कि मार्फा बनाने वाला भी अलिफ लाम होता है? मार्फा लाम बनाता तारीफ। है, मार्फा बनाता है लाम साकिन वाला, लामे तारीफ, जी मैम। वो बनाता है मार्फा। और उसके पीछे जो हमजा लगाते हैं जिसको आप अलिफ लाम कहते हैं, वो तो उस लाम को पढ़ने के लिए लगाया जाता है, हमजातुल वसल। तो ये अलिफ लाम बन जाता है। मार्फा बनाने वाला ये है बेचारा, आप कह रहे हैं अलिफ लाम मार्फा बनाता है। काम इसका है मार्फा बनाना, ये तो सिर्फ जी उसको मैम। पढ़ने के लिए आ रहा है। तो ये कोई किस्म नहीं है, ये हरफी की किस्म भी नहीं है, ये किसी खाते में ही नहीं है।
इसको हम ये नस्ल सिर्फ वसल इसम की कह पहचान के लिए है। हाँ, इसम की पहचान के लिए कि हाँ भाई ये इसम है, जिधर आ जाएगा अलिफ लाम वो इसम है, फेल नहीं हो सकता, हरफ नहीं हो सकता, उतना सा काम है उसका। बाकी जो है अलिफ लाम जितने भी हैं उनकी दो किस्में बनती हैं, अलिफ लाम इस्मी और हरफी। इस्मी वो होता है जो इसम फाइल और मफूल पे आता है। मिसालें यहाँ आपके सामने, अल मगदूब दालिन, दालिन इसम फाइल है कि नहीं मुझे बताएं, उस पे अलिफ लाम आ रहा है कि नहीं है। आ रहा? तो ये अलिफ लाम इस्मी हुआ कि नहीं हुआ, है ना? और ये मगदूब पे जो आया है ये भी इसमें मफूल पे भी आने वाला अलिफ लाम जो होता है इसमें होता है। बाकी वो जो आप अब जैनब आप कह रही है ना कि इस्तगराकी हैं, वो सब हरफी की किस्में हैं, वो इसमी की किस्में नहीं है। इसमी की तो दो ही किस्में हैं, वो तो दो इसम फाइल पे आता है या मफूल पे आता है। तो मुझे ये बताएं कि अलहम्द पे जो आ रहा है वो कौन सा है, हरफी है या इसमी है? नहीं है बाजी। ये अलिफ लाम हरफी। इसमी है या हरफी है, हरफी है? मैम हरफी। हरफी है, हरफी है। तो हरफी। हरफी में कौन सी किस्म है? चार किस्में होती हैं हरफी की। इस्तगराकी है। इस्तगराकी है, ठीक है। अल इंसान पे जी, आने वाला अलिफ, अन्नास पे आने वाला अलिफ, अल आलमीन पे आने वाला, जिनसी है बाजी, जिनसी अलिफ है, लाम हरफ जिनसी। हाँ, ये जिनसी तमाम है उस्ताद जी। इंसान खसारे में है। वो जिन्स पे बोला जा रहा है, लोगों की सारी जिन्स पे। फिर अहद ज़ेनी की मिसाल मैंने दी थी, जैसे अज़ेहबू भेड़िया। अब ये लिखा मार्फा जाता है लेकिन इसका मतलब कोई भी भेड़िया। कोई भेड़िया क्या जी, होता है? नकरा होता है कि नहीं होता? नकरा नकरा का एक मानी देता है। भेड़िया, कोई भेड़िया, है ना, जी, नकरा होता है ये अज़ेहबू है, लिखा हुआ क्या होगा? अलिफ लाम के साथ। तो अलिफ लाम कौन सा हो गया? अहद ज़ेनी, क्योंकि वो भेड़िया हकीकत में मौजूद नहीं है और ना उसने खाया था। वो तो उन्होंने एक मेंढा ज़बह किया और उसका खून लगा लिया उसके कपड़ों पे। लेकिन हमारे ज़हन में तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके वालिद थे, उन याकूब अलैहिस्सलाम के ज़हन में था ना कि कोई भेड़िया खा जाएगा मेरे बच्चे को। तुम जिधर जा रहे हो वो जंगल है, तो वहां भेड़िए होते हैं, मेरा कोई भेड़िया आएगा और मेरे बच्चे को खा जाएगा। कोई भेड़िया, कोई खास भेड़िया नहीं है कि अलिफ लाम लगा हुआ तो ये खास हो गया अभी। ये अलिफ लाम अहद ज़हनी का है कि उनके ज़हन में था कि कोई भेड़िया, कोई भी भेड़िया। तो ये नकरा का मानी देता है। और इसके बाद जो अगली वाली चीज है वो है अलिफ लाम खारजी। अब ये भी आता है खारजी, ये खारिज में मुतय्यन होता है। कोई शख्स, ये तो ज़हन में है ना, ये तो याकूब अलैहिस्सलाम के ज़हन में था कि कोई भेड़िया, है ना। जो खारिज में मुतय्यन नहीं है वो ज़हन में है सिर्फ। खारिज में मुतय्यन है तो फिर वो क्या है? वो है अर लिखो, रसूल की मिसाल दी है मैंने। इस पे लिखो, तो आ बता लिखो। अर रसूल से मुराद, बस पीछे आ जाओ, पीछे काम करेंगे। अच्छा अभी डांट आने वाली है, बंद करो माइक। क्लास में बैठने का कोई वो होता है ना, आप लोग स्कूल भी जाते रहेंगे, यूनिवर्सिटी भी जाते रहेंगे, ये आदाब होते हैं क्लास के, और ये दीनी क्लास है। अपने माइक का ख्याल रखें, क्योंकि आपके घर की कोई बुरी खबर आ गई ना रिकॉर्डिंग में, बुरी भी हो सकती है ना, फिर सही नहीं है। तो अब क्या हुआ, क्या बता रही थी? हाँ, तो वो खारजी में क्या है? वो अर रसूल है, और वो रसूल पता है कि वो रसूल कौन है, वो मूसा अलैहिस्सलाम है। तो वो खारिज में वाज़े हैं, ये जहन में वाज़े हैं, तो अहद ज़हनी है और अहद खारिज। तो ये हरफी जो है ना, मैं फिर लिखती हूँ अलिफ लाम दो किस्में, बोलते जाएं, इसमी, हरफी, हरफी की जी चार किस्में। सही है, इतनी सी कहानी है। इसमी की दो जी किस्में, इसम फाइल पे आता है। मिसालें भी मैम लिख अभी दें। मैम मैम हरफी की तो दो दो कितने किस्में होती है ना, जायदा जी, और गैर जायदा जायदा। हाँ जी। हाँ, वो भी सही आपने याद दिलाया, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ना। अब इस हरफी की पहले दो किस्में होती हैं, जायदा और गैर जायदा। अब जायदा कौन सा है, गैर जायदा कौन सा है? जायदा वो होता है गैर जिसके, ज्यादा वो है जिसके जो, हटाने से हाँ, मकसूदी मानी में फर्क पड़ता है।
पड़ता फर्क है नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। जी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पक्का नॉलेज लेते हैं आप लोग, पता नहीं क्या है। जी मैं किन को जायदा पढ़ा बोलते रही हूँ, हैं मुझे समझ नहीं आती मैं किन को पढ़ा रही हूँ। मैम, जायदा बोलते हैं जिससे फरमाइनी में फर्क नहीं पड़ता, और नहीं गैर पड़ता, जायदा बोल। तभी तो वो जी जायदा है ना। जी मैम। नहीं, मैंने गैर जायदा का बोला। आपने जायदा का बोला, नहीं रिकॉर्डिंग उस्ताद सुनना। शायद मैं कोई लेकिन आप मैसेज आया था ना, इसकी वजह गैर से जायदा पे पहुंच कैसे गई? जब जायदा की अभी डेफिनेशन नहीं हुई तो गैर जायदा पे जी कैसे पहुंच जी गई? जी हैं? जी 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 वो मैसेज आ गया ना उस्ताजा, तो मेरी आवाज ही कट गई। बहाने बनाने में ना खूब माहिर हैं आप लोग। नहीं उस्ताजा, एक्सक्यूजेस तो सही बोल अपनी रही हूँ। गलती नहीं मानी, बस एक्सक्यूजेस दे दें, बोल दे मेरी गलती हो गई है, कुछ नहीं होता। नहीं उस्ताजा, गैर जायदा का ही बोला मैंने, वो पक्का कर लिया है मैंने जहन में। हाँ, तो हमें तो सुनने में ऐसा लगा, सबको सब गवाह हैं भाई, हमें तो ऐसा लगा आपने जायदा का बोला है। जी जी नहीं नहीं, वो ही ना, वो जो मैसेज आ गया ना, उससे आवाज मेरी कट गई, उससे हो गया होगा। थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर दिया करें क्लास में, सबके मैसेजेस भी बीच में आ रहे हैं, सबकी आवाजें भी आ रही हैं, तो ऐसे तो फिर समझ नहीं आती। अभी देखिए जायदा और गैर जायदा, जायदा जो होता है उसके हटाने से वो जायद है, उसके हटाने से फर्क नहीं पड़ता। और गैर जायदा जो है वो उसके हटाने से फर्क पड़ जाता है। अब उसकी मिसालें भी लिखे, बताएं। हटाने से किसका फर्क नहीं पड़ता? लफ्जु जलाला का अलिफ लाम हटाने से फर्क नहीं पड़ता। जी मैम। अल्लाह भी अल्लाह है, इलाहुन भी अल्लाह है, कोई फर्क पड़ा? हुसैन, कोई हुसैन। फर्क, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहली वाली चीज जायदा है, ये अलिफ लाम जो है ये जायदा है। अब दूसरा गैर जायदा की मिसाल दे, फर्क पड़ता है। मिस अगर अल्हम्द, अलहम्द को हम अलिफ लाम हटा देंगे तो उसका मायने बदल जाएंगे। बस हाँ, तमाम नहीं आएगा, तमाम तमाम नहीं आएगा। कमानी नहीं आएगा, वो अलिफ लाम जी हरफी है ना, जी जी उसको मैम। कभी भी आप ना कहे वो मार्फा बनाने के लिए आए। अगर अलहम का पूछा जाए ये कितने अल्फाज का मुरक्कब है तो आप क्या कहेंगे? एक ही लफ्ज है या दो अल्हम्द हैं? दो 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 अल है, और दो एक है, अलिफ दो लाम हैं। है और एक हमद है, जी मैम। जी सही है ना? जी तो ये इस तरीके से आपका था। गैर हमेशा मुजाफ बनता है, उसके आगे मुजाफ इलैह आता है ऑलवेज। अगर वो इस्मुल मफूल हो तो उसका अलिफ लाम अलिफ लाम इसमी होता है। और ये ला भी क्या है? ये नफी के लिए, ताकीद के लिए। ये ताकीद के लिए जो आते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा ही होते हैं। यहाँ भी ला ज्यादा ही है, ठीक है ना? अगर ये ना भी होता ना, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ला ना भी होता तो वलद्दालिन हो जाता, तो यही मतलब बनता, क्योंकि ये वाला गैर यहाँ पर भी आ जाता। लेकिन अल्लाह उसको और खूबसूरत बनाने के लिए, ताकीद देने के लिए अल्लाह ताला ला ले आए। इसको ला जायदा कहते हैं। नफी भी कर रहा है, जायदा भी है, जोर भी पैदा कर रहा है। और ना ही गुमराह हो, ना ही मगदूबन अलैह हो, मगदूबन अलैहि हो, ना ही वो गुमराह हो। तो ये वाली बात है। तो फिर यहाँ पर ये बदल बन रहा है अल्लाह जीना का और सिफा। ये देखें जरा इसको, ये क्या कह रहे हैं? गैरा मुजाफ, और ये पूरा आगे क्या बन गया? मातूफन अलैह और मातूफ, ये मातूफ है, वाव आतफा आ गई तो ये मातूफ बन गया। और अल मगदूबन अलैहिम ये मातूफन अलैह बन गया। मातूफन अलैह प्लस मातूफ मिल के ये आपका गैरा का क्या बन गया? मुजाफ इलैह बन गया। मुजाफिल है। जो ब्रैकेट में होता है वो बाहर मुजाफ है, तो मुजाफ इलैह ही बनेगा ना, उसका अगला पार्ट बनेगा। जी फिर जी मैम। जी ये पूरा जो गैरा है, यहां से लेके यहां तक वाला दालीन तक, ये बदल बनेगा किसका? अल्लाह जीना का। और अल्लाह जीना क्या है? मौसूल है। बदल बना अल्लाह अल्लाह जीना से के नहीं। लिए। जी बदल अल्लाह जिन बदल ये है ना, बना या मुजाफिल है। सिफत बना, बदल बना या सिफत बना। सिफत का भी तो पिछले वाले का इराब लेता है ना। जी अल्लाह जीना की ये जो गैर मगदूबी है ना, ये जो आपने जब भी बनाया है ये पूरा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा अल्लाह जीना अनअमता अलैहिम का की या तो सिफत बन गया या इसका बदल बन गया।
यानी इनाम वाले लोग कौन हैं, इनाम वाले लोगों की तारीफ क्या क्या है। समझे बात को। इनाम वालों लोगों की तारीफ की जा रही है कि वो कौन है जो कि मखदूब भी नहीं है और जो दालीन भी नहीं है। जी। ये मतलब है इसका। जी मैम। इनाम वाले अल्लाह ताला को बता रहे हैं ना, लोग बता रहे हैं दुआ में कि इनाम वाले लोग कौन हैं जो कि मखदूब भी नहीं होंगे, हमें उनमें शामिल करना जो इनाम वाले हैं, ठीक है। और इनाम वाले वो हैं जो मखदूब भी नहीं है और जो दालीम भी नहीं है, उनमें यानी उनमें शामिल नहीं करना। जी मैम। हमें इनाम वालों में शामिल करना। इनाम वालों की तारीफ क्या है, वो मखदूब भी नहीं है और दालीम भी नहीं है। मखदूब वो होते हैं, इसका मीनिंग मैंने कभी नहीं बताया। मखदूब वो होता है जिनके पास इल्म होता है और वो अमल नहीं करते, वो मखदूबुन अलैहिम होते हैं। और दालीन कौन होते हैं, जिनके पास इल्म ही नहीं होता। अभी इस जमाने में भी दो तरह के लोग हैं। जी मैम। ये ज्यादा गुनहगार होते हैं, इनके पास इल्म होता है, अमल नहीं होता। इनके पास इल्म होता है और अमल भी होता है कि नहीं होता। ये जो नाम वाले लोग हैं ये अपने इल्म पर अमल भी करते हैं। और ये जो होते हैं मखदूब है, इनके पास इल्म होता है, अमल नहीं होता। अमल का फुकदान होता है, इल्म ही इल्म होता है, अमल नहीं होता। तो ये मखदूब हुए, ये ज्यादा ये दालीन जो है ना, गुमराह होना, ये कम गुनाह है। ये गुमराह है, अपना रास्ता भटक गए हैं। ये सिर्फ सीधे रास्ते पे आ सकते, जो अपना रास्ता खो देता है, भटक जाता है, और उस रास्ते पे आ सकता है ना, वापस आ सकता है। जी जी लेकिन आ जिसके पास सकता है। इल्म भी आ गया, सब कुछ है, अमल अमल नहीं है, तो फिर वो ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। और इससे मुराद फिर क्या लेते हैं, ये तो हर जमाने में ही है, हमारे मुसलमानों के अंदर भी सारी होती हैं सिफात। और मखदूब कौन होते हैं, जिनके पास इल्म होता है, जो बाअमल उलमा नहीं होते, वो मखदूब होते हैं। सही है। और हम्म। जो हम्म। उनके पास इल्म ही नहीं है, जो सीखना ही नहीं चाहते, जो कहते हैं कि इल्म हासिल करेंगे तो अमल भी करना पड़ेगा, जितना इल्म होगा इतना हिसाब होगा। ये वाकई सही बात है, जितना इल्म होगा उतना ही बड़ा हिसाब होगा। हिसाब मुश्किल होगा, ठीक है, समझ आइए। जितना जी कम जी इल्म उस्ताद। होगा, कम इल्म होगा तो कम हिसाब होगा। आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि मुझे तो इल्म ही नहीं था, लेकिन अब इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप इल्म ही ना हासिल करें, कि नहीं इल्म हासिल करूंगी तुम्हें तो हिसाब देना पड़ेगा। तो वो उसका तो डबल आपको गुनाह मिलेगा, वहां पे डबल सजा होगी कि हासिल क्यों नहीं किया था। मैंने कहा था ना, माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करना। तो तुमने क्या कहा, तुमने इल्म हासिल करूंगा तो ना ही करूं तो बेहतर है, बच जाऊंगा गुनाह सजा से। वहां डबल सजा होगी आपकी। पहले अल्लाह ताला पहला सवाल जो करेंगे ना, आपने इल्म हासिल किया था कि नहीं किया था। अगर वो कहेगा मैंने किया था, तो फिर अगला सवाल होगा कि तुमने अमल किया था कि नहीं किया था। अब उसके पास जवाब होगा या नहीं होगा। अगर जवाब नहीं है कि मैंने अमल नहीं किया, तो अब ये मखदूब है। और उसने अगर इल्म हासिल ही नहीं किया, तो अल्लाह ताला पूछेंगे नहीं क्यों नहीं किया, तुम्हारे तो हथेली पे आ गया था सब कुछ, तुम्हें तो घर में बिठा के पढ़ाया जा रहा था, क्यों नहीं लिया तुमने इल्म। तुमने दुनिया की डिग्रियां तो ले ली, मेरा इल्म लेते हुए तुम्हारे पास दिमाग नहीं था कि मेरी किताब का भी इल्म ले लेते। देख लेते हैं हमारे रब के, हमारा रब हमसे क्या चाहता है। हमने कुरान को बना लिया है, उसको खूब अच्छे से गिलाफों में लपेट के लड़कियों को, बेटियों को रुखसत करते हैं उनके सर पे। वो कहते हैं कि ये नहीं होगा तो शायद हमारी बेटी की रुखसती ही नहीं होगी। कहाँ से ये लाए हैं हम लोग चीजें, कहाँ से साबित है कि बेटी को रुखसत करते हो सर पे गिलाफ, इतना स्पेशल गिलाफ चढ़ाया जाता है। और उसको सजा सुजू की मूवियां बन रही हैं, और अभी अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कुरान इसलिए आया है, इसलिए आया है कुरान। कुरान अमल के लिए आया है। अभी पता है क्या करते हैं, आसान आसान, खुद को पढ़ना नहीं आता ना बच्चों को कुरान, तो फिर सेल फोन को ऑन करके माँ की कब्र पे रख देते हैं, उसको कुरान जा रहा है। उसका अजर जो कारी है उसको खुद को ही मिल रहा है, तुम्हारी माँ को नहीं मिल रहा। माँ ने जो पढ़ा, जिसने पे अमल किया, उसी का अजर उसको कब्र में मिलेगा।
या फिर तुम पढ़ोगे, नेक औलाद होगे, पढ़ोगे तो तुम्हारा फिर उसको जाएगा सदका जारिया। तो बहरहाल ये तो लंबी बातें हैं। अब ये आयत मैंने दोबारा आज करवा दिया वाला दालीन, अब इसमें कोई भी आप खुद भी देखना, ठीक है। तो सिराता मुजाफ अल्लाह जीना, यहाँ तक इसका मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है मिलके जुमला फिलिया खबरिया हो बन के, ये वाला जुमला फिलिया खबरिया बन के अल्लाह जीना की सिफत मौसूल और सिला मिलके इसका मुजाफिल बन गया। और फिर ये गैरा मुजाफ और ये पूरा आगे वाला जुमला मुजाफिल है, मुजाफ और मुजाफ मिलके इस पूरा अल्लाह जीना पे बदल हो गया, या अल्लाह जीना की सिफत बन गया। अल्लाह जीना इससे मौसूल है, या तो इसको पूरे को सिफत बनाएंगे या इसको बदल बना देंगे अल्लाह जीना। यहाँ से यहाँ तक इस जुमले को गैरा से शुरू हो रहा है ना, ये वाला जुमला, ये वाला जुमला जो है ये अल्लाह जीना मौसूल का इस मौसूल की सिफत बना दे यहाँ पे, या फिर बदल बना दे, दोनों काम कर सकते हैं। सही है। अल्लाह जीना को मौसूल बना ले, इसको सिफत बना दे, या अल्लाह जीना को मुबदल मिन्हु बना दे, ये मजरूर है तो ये भी मजरूर है, इसको बदल बना दे। मैंने असाइनमेंट के लिए आप बताएंगे कि किस तरह हमें करना, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। आसान होगा, टेस्ट फिक्र नहीं करें, पहला टेस्ट आ गया ना तो आपको पता चल जाएगा टेस्ट का पैटर्न क्या है, सब है वो, आप फिर अगला टेस्ट खुद नहीं मैम, असाइनमेंट बनाना होगा ना। असाइनमेंट नहीं होगा, छोटा सा 10 नंबर का टेस्ट होगा। अच्छा सही है। और पहला लेक्चर सुने, उसी के अंदर से नोट्स बनाए, उसी में से टेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, और नोट्स बिस्मिल्लाह, भेजने उसमें के जो लिए। एडिशनल चीज होगी वो बिस्मिल्लाह की तरकीब और आऊज़ु बिल्लाह की तरकीब होगी, दोनों में से कोई एक आ जाएगी या दोनों आ जाएंगी। टेस्ट पेपर मैंने चेक किया, प्रूफ रीडिंग मैंने किया, लेकिन मैं बता नहीं सकती। आई एम नहीं सो ठीक है, सॉरी। सही है। नहीं मैं ही सोच रही थी कि नोट को फेयर करके फिर मुझे भेजना भी होगा आपको, इसलिए मैं पूछ रही हाँ, मुझे जो आएगा ना टेस्ट, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी करें। आप पहले थी। पेंसिल अच्छा से जो भी टेस्ट करना है खराब प्रूफ करके, फाइनल कॉपी जो मुझे आएगी बेहतरीन आनी चाहिए। और आपके पास भी वो रिकॉर्ड होगा एक, ठीक है, कि आपने ये टेस्ट सॉल्व किया था, इसमें ये आपकी मिस्टेक आई थी। मिस्टेक आनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सही है ना। सॉरी मैम, गलती हो गई थी मुझसे। हाँ, क्या बोल रही हैं आप, किस चीज की सॉरी कर रही हैं? मैम वो इसमें हल्दी इसमें को मैंने हर वो कह दिया था ना, इस बात पे सॉरी कर रही हूँ। नहीं, कोई वो बात नहीं गलती से है, हो गई। उससे भी आपने सीखा ही होगा ना। हाँ जी। असल बात है जी मैम। गलती से सीखना, जो गलती से सीखता नहीं है वो और ज्यादा बड़ी गलती करता है। जी मैम। गलती करना बुरी नहीं है, गलती पे गलती करना बुरी बात है। जी मैम। ठीक है ना। तो पहला जी क्वेश्चन जो जी होगा वो आपका तो खाली जगह पुर करना होगा, ठीक है, नंबर 1। जी नंबर 2 में सवाल होगा एक, कोई भी सवाल होगा जिसका पूरा जवाब लिखना होगा। जी मैम। सही है ना। इस तरह का एक सवाल जी होगा, जैसे मसलन अभी ये मैंने अभी अलिफ लाम इसमी पढ़ा है, इस तरह मैंने और भी चीजें पढ़ाई हैं आज। तो जी मैम। वो उसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, सवाल हो सकता है जिसका भरपूर तरीके से आपको जवाब देना है। तो ये सवाल होगा। फिर उसके बाद जो आपका अगला होगा, अब इसमें अलिफ लाम, इसमें आप जायदा और गैर जायदा ना भूल जाना, मैं भी भूल गई थी आज। मैं सारा अच्छी तरह याद करूंगी, दोबारा दोबारा सुन के इंशाल्लाह। नहीं, उस आज की रिकॉर्डिंग भी सुन के नोट्स बनाना, ठीक है। जी जी और मैं उसमें मैं आपने, रोजाना लिखती हूँ, मैं रोजाना लिखती हूँ, आपका आपका भी लिखती हूँ। हाँ देखिए, अलिफ लाम जो आप बना रहे हैं ना, हरफी, उसकी पहले जी 2 मैम। किस्में बनाएं, एक जी जायदा मैम। और गैर जायदा। इन दोनों की तारीफ भी लिखें, ठीक है ना, ये जी आपको पूरे नंबर इसी तरह मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। गैर जी मैम। जायदा, इन दोनों की तारीफ लिखनी है। फिर गैर जायदा जो है उसकी आपने 4 किस्में बनानी है। जी इसकी तो कोई किस्म नहीं ना आगे, जायदा तो ऐसे ही है, अलिफ लाम मैम ये हरफी। शहरों और मुल्कों के नामों पर आता है ना जायदा। जायदा, हाँ अगर हटा दें तो भी, यानी कोई भी अलम है ना, शहरों मुल्कों के हैं, किसी बंदे का नाम है, देखो अभी जैसे अल हसन है, अल हुसैन है, अलिफ लाम हटा देंगे तब भी वो अल हसन ही रहेगा, नाम तो वही रहेगा ना। जी अल जी हसन को बिल्कुल। हम हसन बुलाते हैं, अल हसन तो ये अल्लाह के लफ्ज़ जलाला पे आता है। अच्छा, वो जो है ना मकसूदी मानी में फर्क आता है, मकसूदी मानी में फर्क नहीं आता, उसका डिफरेंस याद रखना है, किस पे आता है और किस पे नहीं आता।
اور یہ جو الف لام زائدہ ہوتے ہیں اس کی پھر 4 قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کی بھی ایک ایک مثال دے دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ڈیفینیشن نہیں لکھ رہے تو ایک ایک مثال دے دیں، کم از کم 4 قسمیں تو ضرور لکھیں غیر زائدہ کی۔ پھر اس طرح کے سوال، اس طرح کے 2-3 سوال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی یعنی اس طرح کے سوال ہوں گے جن کے جواب آپ کو فل ان دا بلینک ٹرو اور فالس نہیں ہوگا، پورا جواب لکھنا پڑے گا۔ جی میم، مثلا جیسے سوال ہوتا ہے کہ جار و مجرور خبر کب بنتا ہے، اس طرح کا ایک چھوٹا سوال ہوگا، ایک بڑا سوال ہوگا، اس طرح کے کر کے ہو سکتے ہیں۔ پیچھے مارفا اسے مارا تو ہونا آپ نے کیا کرنا ہے، سوال کو غور سے خبر پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو سوال کو غور سے پڑھنا ہے، 2-3 بار پڑھیں کیا پوچھا گیا، پھر سوال کے سارے پارٹس کریں، کوئی ایک پارٹ بھی نہ چھوڑیں، جتنا پوچھا گیا سب بتائیں۔ میم سوال کو ہم کتنے دن میں پڑھتے نہیں، جواب لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ جی میم، پھر اچھا، غلطی ہو جاتی ہے پھر ایک میم۔ اس طرح کے 3-4 سوال ہوں گے جن کے جواب دینے ہوں گے۔ جی میم، میم کتنے دن مثلا یہ بھی ہو کتنے دن؟ سکتا ہے کہ اسم کی پہچان کیا ہے، اسم کو آپ جی کیسے الف لام پہچانیں گے، 4 باتیں لکھیں، 5 لکھیں، 3 لکھیں، کوئی نشانیاں بتائیں کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے، جواب آپ کو آتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہوں گے، میں نے بھرپور پڑھایا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ جی اور الحمدللہ۔ 10 نمبر کا تو سوال ہوگا پورا، تو اس اچھا، میں آپ کا پہلا والا فل ان دا بلینکس ہو جائے گا، دوسرے والے میں جی سوال میم، آ جائیں گے۔ اچھا، ایک آدھ ترکیب ہر ٹیسٹ میں ہوگی، جی میم، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی پوری آیت بھی ہو سکتی ہے اگر چھوٹی ہے، اگر بڑی آیت ہے تو اس کا۔ اچھا، ایک اور چیز جو ٹیسٹوں میں آنی ہے وہ میں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو کلاس میں پڑھاؤں گی، وہ ہے جملوں کا اعراب۔ جملے ہوتے ہیں نا، ایک آیت کے اندر بہت سارے جملے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی جملہ دیتے ہیں، اس جملے کا اعراب بتائیں۔ اگر وہ حال بن رہا ہے تو پھر آپ نے کیسے اس کا بتانا ہے کہ یہ حال بن رہا ہے، وجہ بھی بتانی ہے، حال کیوں بن رہا ہے یہاں پہ۔ یہ والی چیز میں اگلی کلاس میں آج کرانی تھی لیکن پھر یہی ہو گیا، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جملوں کا اعراب بتاؤں گی۔ اور انشاءاللہ۔ ہاں، کچھ جملے ہوتے ہیں جو محل اعراب میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کم از کم جملوں کا اعراب تو میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو پڑھا دوں گی، اور نیکسٹ کلاس آپ کی وینسڈے کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل تو ہماری بک 8 ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ بک 8 بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت گرامر سیکھ رہے ہیں، ریویژن ہو رہا ہے ہمارا، تو کوئی بھی کلاس ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی فضول ہو، جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ صحیح ہے، بس آپ ٹائم نکالیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آپ ورحمۃ کا اللہ۔ آپ کا ٹیسٹ میں ہمیں وینسڈے نائٹ کو آ جائے گا 12 بجے کے بعد، یعنی تھرسڈے ہو جاتی ہے نا آگے، تو پھر آپ نے سنڈے تک کر، پورا اسکیڈول تو آپ کو دے دیا گیا ہے نا، آپ میم سنڈے تک دینا ہے؟ سنڈے تک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، صحیح صحیح ہے۔ سنڈے لاسٹ ڈے ہوگا ٹیسٹ بھیجنے کا، پھر اس کے بعد پھر آپ تو بھیج دیں گے، پھر ہم چیک کریں گے، پھر جب سب کے ٹیسٹ آ جائیں گے تو ہم کی بھی بھیج دیں گے، تو کی سے آپ اپنا ٹیسٹ مارک کریں گے۔ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، کتنی 5 منٹ بھی نہیں لگیں، لیکن اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جب اپنا ٹیسٹ خود دیکھیں نا، غور سے دیکھیں گے، اچھا میں اگر جواب جو ہے نا وہ آپ کا صحیح ہے لیکن الفاظ ملتے جلتے نہیں ہیں ہمارے کی کے ساتھ، تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو نمبر دیں گے، اور اگر آپ نے بالکل ہی کچھ الٹ جواب دے دیا ہے تو پھر آپ اپنے نمبر کاٹیں گے۔ تو 1-2 ٹیسٹ آپ چیک کریں گے تو آپ کو چیک کرنا بھی آ جائے گا، صحیح ہے؟ اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر نا؟ استاذہ۔ عائشہ اشرف تو آج بولی نہیں، جزاک اللہ خیر۔ نگت شکور بھی نہیں بولی۔ لیکچر کو غور سے سنیں، اور لیکچر کو سنے بغیر آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنا۔ جی انشاءاللہ میں نے تعالیٰ۔ لیکچر کو نہیں سنا، مجھے نہیں پتا لیکچر کے اندر کیا ہے، اس لیے میں آپ سے شروع میں پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا، شاید میں بعد میں سن لوں لیکچر نمبر 1، کیونکہ میں نے جب اپنا ٹیسٹ کیا تھا تو میں نے لیکچر سنا تھا، نوٹس بھی بنائے تھے۔ تو اب آپ کی باری ہے تو آپ لوگ لیکچر سنیں گے نا، آپ بنائیں گے اس جی لیکچر میں کیا کیا سوال آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکچر 1 سنیں اور اس میں سے کیا کیا سوال آ سکتے ہیں، بس آپ نوٹس بنا لیں، انہیں میں سے لیکچر نمبر 1 کا ٹیسٹ بنایا گیا، باہر سے کچھ نہیں ہے۔ لیکچر نمبر 2 کا پھر جو ہے اسی میں سے اگلے والے میں سے بنایا گیا،
ٹیسٹ 2 بنایا گیا ہے، لیکچر 3 سے ٹیسٹ 3 بنایا جائے گا اس طرح. اوکے.